इम्फाल जो कैपिटल है उसकी गलियों में रोज़ गोलियां चलती थी, गलियों में, शहर की। मेरे घर से 500 मीटर के फासले पे गोलियां चलती थी। उस किताब में मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये सिचुएशन कभी सॉल्व नहीं होगी, और आज भी ये बात सही है। कुछ इंसर्जेंट मेरा घर ढूंढ रहे थे फैमिली को अटैक करने के लिए, तो मेरी वाइफ घर पे नहीं थी, तो मार्केट में थी, तो जवान गए मार्केट से उनको लेके आया, घर पे गार्ड वार्ड लगाई। मुझे याद है 166 रुपये जब मुझे पहली सैलरी मिली, तो आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा लो भी आज तो कमाल हो गया। जम्मू कश्मीर का पुलिस कांस्टेबल, उसके हाथ में वायरलेस, उसको कोई टेररिस्ट कह रहा है कि मैं पहाड़ी से तेरे साहब को देख रहा हूँ और अभी मैं गोली से उड़ा दूंगा उनको। Welcome to the Vision IS podcast. In the second episode of this series, who we have today is a very special guest. A retired IPS officer who has dedicated his life to serve the nation in various crucial roles. He has held prominent positions such as the Director General of SSB, the DGP and Home Secretary of Manipur, and also as the DGP of Tripura at the peak of insurgency. With a rich career serving in Delhi Police, BSF, CRPF and CISF, he has been awarded numerous medals, including the prestigious President's Medal for his distinguished services, and also Guru Samman by the Vice President of India. He is also an author who has written 14 books, and for his contribution in literature, he has been conferred Doctorate of Literature by Chitkara University. So without any further ado, let's dive into his extraordinary journey and let's hear from him about his experiences. Sir, welcome to the podcast. Thank you. We are very honored to have you with us. Thank you so much, Pooja. Thank you. Sir, let's start with the beginning of your journey. You were born in Western Punjab in 1945, which is currently in Pakistan, and your family migrated to India with no resources at all. After accomplishing so much in life, how do you look back at that moment? Firstly, Pooja, I was born in 1944, not in 45, a minor matter. And I was born in a place called Panja Sahib, if you heard that. In Sikhism, it's a very well-known religious place. It's a place close to Rawalpindi, where I was born. 3-year-old at the time of partition, don't remember much of that place. But yes, the family got uprooted, as you know, millions got uprooted, killed, maimed. They had to leave the places, their hearth and home. So my parents also came along, my father, 4 of my uncles. My father was the eldest. So we came first to Amritsar. From there, because it was close to Wagah border, somehow life was saved. And then from there, from one town to another, and finally we came to Delhi, where the family was directed to a place in Malkaganj. Malkaganj is in North Delhi, where there is a university there. Hansraj College is opposite that, and that was one of the refugee camps established by the government at that time. And we were given some open space and said, you come and stay here. There was nothing to even have a shelter. So there is a hillock nearby. It's called Bada Hindu Rao. And then from there, my uncles, they brought stones, big stones, and they made a room. And we started living in that. And one day that room fell. And we lived on the road literally for about 4 or 5 days till it was rebuilt. But yeah, life was very tough in the refugee camps. In Amritsar also, they used to give you only rotis, dried rotis after 2-3 days time. And they were totally dried. And my parents and everybody else would dip it into water and eat. That was the kind of life. And they had nothing else but clothes on their body. So that was all. And it was a very tough life, of course, more for them, less for people like me. We were children. But yeah, we also had our share of difficulties and all that. सर, हम पार्टीशन के टाइम की बात कर ही रहे हैं, तो वी नो दैट देयर वर अ लॉट ऑफ एट्रोसिटीज दैट वर कमिटेड अगेंस्ट रिफ्यूजीज. सो डिड योर फैमिली एवर टॉक अबाउट दोज एक्सपीरियंसेस और रिफ्लेक्ट बैक अपॉन व्हाट दे हैव लॉस्ट इन पाकिस्तान? माय फादर rarely talked of those atrocities. Most of them had left behind. They were bitter, of course, anyone will be bitter.
We had large houses, lot of business and all that was there. But he did not talk much about it because emphasis at that time more was to build life and look ahead in the future. But yeah, they were, everybody lost family members, including our family. They lost some members, all that happened, and all the crimes which are inhuman, you know, there's murders, rapes, everything happened. But they did not talk much about it. And in a way, it was good that, you know, you always should look forward. What can you do? Also later on, much later in life, when I asked my father one day whether you regret having left Pakistan and come here, he said, no, I have no regrets. And talking of the personal family life, he told me, he said, well, if you had been there, you would have been sitting at a shop. क्योंकि हम लोग दुकानें थी तो उस वक़्त ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक तो तराजू थे नहीं, तो तकड़ी बोलते थे उसको, आपको शायद अंदाज़ा हो, तो कह रहे थे तकड़ी में तू कुछ सामान दाल तोल रहा होता तो अच्छा है कि हम लोग यहाँ आ गए. That's how he said that. I think every Punjabi who came from here, of course Bengal also was divided at that time, but I think everybody looked forward. There was no, and there's no way of looking back help you. Yeah, that's what it is. Sir, after that you grew up in a refugee colony. How was your life back then? Can you share some insights of that time, especially आपकी educational journey के बारे में, because आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से graduate हैं. पूजा, हम लोग जब वहाँ थे तो गवर्नमेंट ने एट दैट टाइम दे मेड मैनी रिफ्यूजी कॉलोनीज इन दिल्ली, बहुत बनाई उन्होंने, और सम आर वेरी वेल नोन इंटरनेशनली. लाजपत नगर, पटेल नगर, राजेंद्र नगर वेयर यू आर सिटिंग, बहुत कॉलोनीज बनाई उन्होंने. तो एक कॉलोनी नॉर्थ दिल्ली में भी बनी, भारत नगर उसका नाम है, जहाँ हम लोग शिफ्ट हुए थे. मैं समझता हूँ कई बार कि जैसे इंसानों का हारोस्कोप होता है, कॉलोनीज़ का भी हारोस्कोप होता होगा, उसको आज तक कोई नहीं जानता, और यहाँ पे और कॉलोनीज़ को लोग काफ़ी जानते हैं. हम लोग वहाँ मूव किए, लेकिन उससे पहले मुझे एक दो चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था. जैसे मैंने बताया कि हम लोग सड़क पे रहे एक बार, और फिर मदर बीमार हो गई, और इट वॉज़ वेरी टफ लाइफ. तो किसी तरह थोड़ा बहुत काम जब मिला, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी. माय फादर वाज द एल्डेस्ट, 4 भाई थे छोटे, साथ ही रहते थे वो लोग, तो उनका भी लुक आफ्टर करना. बट दे वर ग्रोन अप, सो दे आल्सो ट्राइड टू हेल्प रीबिल्ड द फैमिली. हम लोग क्योंकि पंजा साहब से आते हैं, एक सिख ट्रेडिशन से आते हैं, तो हम लोग एक वहाँ गुरुद्वारा बनाया कुछ सिख भाइयों ने, तो हम वहाँ गुरुद्वारे में जाया करते थे. तो एक किस्सा जो मुझे याद है, हाउ यू लर्न लेसन्स इन लाइफ. मुझे एक नई चप्पल ख़रीद के दी मेरे पेरेंट्स ने. मस्जिद कर रहा होगा, बच्चा होगा, पेशावरी चप्पल उसको बोलते थे. आई डोंट नो वेदर यू हर्ड ऑफ इट और नॉट. तो मैं गया गुरुद्वारे, और कोई मेरी चप्पल उठा के ले गया. जब मैं बाहर निकला तो चप्पल थी नहीं, मैंने किसी और की उठा ली. तो मैं घर आ गया. आई टोल्ड माई मदर, रोते हुए और प्राउडली, कि मेरी चप्पल किसी ने ले ली और मैं किसी की उठा लाया. तो मदर स्लैप्ड मी, मारा ज़ोर से थप्पड़, वो चप्पल मेरे हाथ में उठाई. शी टुक मी बैक टू द गुरुद्वारा, मेड मी अपोलोजाइज, टोल्ड मी दैट नेवर डू दिस अगेन. दैट इज़ हाउ यू लर्न लेसन्स इन लाइफ. एनीवे, सो जब ये रिफ्यूजी कॉलोनी बनी तो उस वक़्त 3 रुपये महीने के किराए पे हमको एक क्वार्टर मिला. उस वक़्त 2 क्वार्टर मिले. गवर्नमेंट का रूल था भी 4 या 5 से ज़्यादा मेंबर होंगे तो 2 मिलेंगे, उससे कम होंगे 1 मिलेगा. और ये 1.5 रूम था, ए रूम एंड ए हाफ, एस्बेस्टॉस शीट थी उस पर. और जो हाफ था वो तो इट वाज लाइक ए वेरांडा ओनली विद बिग ओपनिंग. तो खैर हम लोग फिर वहाँ शिफ्ट किए. अगेन नो वाटर, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फ्लश सिस्टम. इन फैक्ट दीज थिंग्स कंटिन्यूड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. बिजली तो तब आई जब मैं 11वीं में पढ़ता था, तब 10+2 सिस्टम नहीं होता था, हायर सेकेंडरी का सिस्टम होता था. तो टिल 11th स्टैंडर्ड, टिल माई बोर्ड्स एग्जामिनेशन, आई स्टडीड एट ए केरोसिन लैम्प. उस वक़्त की जो बात थी. और यहाँ तक कि व्हेन आई गॉट मैरिड इन 70 मच लेटर, तब जाके फ्लश सिस्टम आया वहाँ पे. ऑल दैट हैपेंड लेटर ऑन. पानी हैंड पंप होते थे, आज भी हैं,
देखते हैं हम लोग गांव में, तो हैंडपम्प से पानी हम लोग यूज़ करते थे। अब ये हुआ कि नेचुरली स्कूल तो हमारे घर से कुछ 4-5 किलोमीटर की दूरी पे एक घंटा घर है सब्ज़ी मंडी में, एक आपने शायद सुना हो। उसके आगे एक पंजाबी बस्ती एक जगह है, तो वहाँ पे एक स्कूल था जहाँ पे स्कूल में मुझे दाखिला कराया गया। तो मैं रोज़ 4-5 किलोमीटर पैदल आना जाना स्कूल जाते थे, और मैं नहीं था और भी थे, ऐसा नहीं कि कुछ अनयूजुअल था। उस वक्त कोई अनयूजुअल नहीं लगता था, ऐसा नहीं लगता कोई ख़ास तकलीफ़ है। तो वहाँ आना जाना हुआ। फिर मैं वहाँ पे एक बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल है, बड़ा मशहूर था उस ज़माने में, वहाँ पे मैंने किया 10th 12th। उसके बाद क्या हुआ कि मैं साइंस स्टूडेंट था, बड़ा शौक़ था उस ज़माने में, हर कोई साइंस लेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और मैं पढ़ाई में बहुत ही नालायक था, आउटडोर में बड़ा अच्छा था। तो सोनीपत में एडमिशन लिया हमने, और रोज़ ट्रेन से जाते थे सोनीपत पढ़ने, और रोज़ लौट के आते थे ट्रेन से। पढ़ना तो क्या था, फ्रैंकली मस्ती करते थे, दोस्त यार ऐसे मिल गए, खुद भी डूबे, हमें भी डुबो दिया, तो फेल फाल हो गए। फिर ये हुआ कि भाई अब क्या करें, तो फादर ने कहा तेरे बस का है नहीं साइंस वाइंस पढ़ना, तू ऐसे करके कुछ और पढ़ ले, आर्ट्स वगैरह। उन दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप हैरान होंगे सुन के, दाखिला इतना आसान था, आप किसी कॉलेज में जाओ, जिस सब्जेक्ट में मर्जी एडमिशन ले लो। तो मैं, जिन्होंने मेरे पिताजी के कांटेक्ट थे, वो प्रोफेसर थे इसमें हंसराज कॉलेज में, प्रोफेसर कपूर कॉमर्स के। तो मैं इंग्लिश में बड़ा अच्छा था स्टूडेंट, मैं आपको बताना भूल गया, मैं स्कूल में आई वॉज द टॉपर इन इंग्लिश ऑलवेज। मैं, अगर मेरे मैक्सिमम मार्क 80 थे 100 में से, तो नेक्स्ट के 45 थे। और मैथमेटिक्स में मैं नीचे से फर्स्ट होता था, 100 में से मेरे 10-12 नंबर आया करते थे। दैट इज़ व्हाट इट यूज्ड टू हैपन। तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स जाके ले लिया हंसराज कॉलेज में। दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा कि एडमिशन हो गया, क्या लिया? मैंने कहा जी ये। कहते नहीं नहीं, तू इसको छोड़ दे, कोई फ़ायदा नहीं है, इकनॉमिक्स ऑनर्स ले ले तू। अब वो उनको पता ही थे, इकनॉमिक्स ऑनर्स लिया। सो आई स्टडीड इन हंसराज कॉलेज, वहाँ से I passed with good marks. I did my economics honors way back in 1964. College life was good. हंसराज कॉलेज उस वक़्त खाली लड़कों का कॉलेज था। आजकल तो को एजुकेशन हो गई, कई कॉलेजेस ऐसे थे जहाँ लड़कियाँ ही थी थे, पर थोड़े से कॉलेजेस थे। The entire campus was limited to a certain very well-known colleges today like मिरांडा, स्टीफंस, हिंदू, करोड़ीमल, ये कुछ कॉलेज थे, कुछ बाद में बने। लाइफ वॉज गुड, और प्रिंसिपल बड़े अच्छे थे, शांति नारायण, एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था, पढ़ाते भी थे, टीचर्स बड़ी मेहनत करते थे, बहुत मेहनत करते थे उन दिनों। मेरे जो अपने टीचर्स थे, दे हैड रिटन बुक्स देमसेल्व्स ऑन इकनॉमिक्स। इंडियन इकनॉमिक्स में मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जहांगीर, उन्होंने किताब लिखी वो। और जब मैंने IAS का इम्तहान दिया 66 में, तो उसी किताब को पढ़ के मैं आई गॉट 76% मार्क्स इन द UPSC, 152 आउट ऑफ 200, विच वुड परहैप्स स्टिल बी ए रिकॉर्ड, आई डोंट नो रियली। तो दे वर सो गुड। तो फिर आई ट्राई टू डू पोस्ट ग्रेजुएशन, इन बिटवीन मेरी कोई और जर्नी शुरू हो गई, बट दैट इज़ व्हाट हैपेंड। बट इट वाज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। आई लर्नड अ लॉट, आई बिकेम रिस्पॉन्सिबल। It depended on the company, the atmosphere, this, that, all that was there. It was a good time. Even now I occasionally go to college to meet or to my schools. Yeah, thank you. सर, इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सर, आपकी जर्नी बहुत फैसिनेटिंग रही है, स्पेशली फॉर द यूथ। आपकी करियर की शुरुआत आपने एज अ लोअर डिविजनल क्लर्क करी, फिर आप अपर डिविजनल क्लर्क बने, फिर रेलवे बोर्ड में असिस्टेंट, एंड फाइनली यू बिकेम एन IPS ऑफिसर। ये सब कुछ हुआ 1964 से 1967 के दौरान। सर, क्या मोटिवेशन थी इन सब ट्रांजिशंस की? मोटिवेशन तो क्या थी पूजा, ज़रूरत थी। मैंने आपको बताया, मैंने 1964 में इकनॉमिक्स ऑनर्स किया। अब नौकरी की तलाश थी कि भाई कुछ काम किया जाए, ढूंढा जाए, क्या किया जाए। उस वक्त IPS तो पता ही नहीं था कि होता है। तो ये हुआ कि कुछ भी मिले। तो
टाइपिंग सीखी। उस वक्त ये बड़ा रिवाज था कि टाइपिंग सीखो, स्टेनोग्राफी सीखो, ये करो वो करो, जी। तो टाइपिंग सीखी, लेकिन उसमें भी नालायक सिद्ध हुआ, सीख नहीं पाया। लेकिन एक चीज़ है, जो चीज़ आदमी सीखता है काम आती है। आज मैं कीबोर्ड पे आई एम वेरी प्रोफिशिएंट, ये जो चलाता हूँ कंप्यूटर आई, इट्स वेरी हेल्पफुल टू मी। एनीवे, तो फिर कुछ जॉब्स मिली मुझे, कई जगह मिली, दिल्ली में मिल गई मुझे, पर मैंने कहीं ज्वाइन नहीं किया। वो कंडीशन लगाते थे कि यू हैव टू पास द टाइपिंग टेस्ट विद इन 6 मंथ्स, तो वो मैं कर नहीं पाया, तो मैंने छोड़ ही दिया। फाइनली उन दिनों भी यूपीएससी का एग्ज़ाम होता था, एलडीसी का, जी। जो आजकल एसएसबी कंडक्ट करती है शायद, तो वो इम्तहान मैंने दिया। और एक चीज़, दो चीज़ों ने मुझे बड़ा फ़ायदा किया लाइफ में। एक तो जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तो उस वक्त एबीसी 5th स्टैंडर्ड में शुरू हुई थी हमारी, और 6th में वो फिर दोबारा शुरू हुई। दैट ईयर ऑन दे सेड 6th से पढ़ाएंगे। तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू, आई वाज गुड एट इंग्लिश। यस। और हमारे घर पे हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर आया करता था तब भी। माय फादर हैड पास्ड हिज मैट्रिकुलेशन वे बैक इन 1929 in Punjab Sahib in Pakistan. In fact, he was one of the 3 persons in the whole district who had passed matriculation at that time. So much so कि वो अंग्रेज़ ले गए, उनको तहसीलदार बना दिया कि चलिए आप। हाँ, तो आई वॉज गुड इन इंग्लिश, आई वॉज गुड इन जनरल नॉलेज, न्यूज़पेपर मीन्स। मैं हर एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट को हमेशा ये सलाह देता हूँ कि अखबार रोज़ाना पढ़ो। इफ़ यू डू दिस, एंड आई एम सेइंग टुडे ऑल्सो थ्रू योर मीडियम, अखबार अगर आप रोज़ पढ़ोगे तो आधा आपका जीएस तो समझो बगैर तैयारी के ही हो जाएगा, और कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है ही नहीं। जी। दैट हेल्प इन कॉम्पिटिशन्स। तो मैं एलडीसी का एग्ज़ाम दिया, एंड आई थिंक आई गॉट ए वेरी गुड रैंक, एंड आई स्ट्रेट अवे क्लियर्ड इट। और उसके बाद मुझे मिनिस्ट्री ऑफ रिहैबिलिटेशन में नौकरी मिली, जो जैसलमेर हाउस में है। जी। इट्स क्लोज टू इंडिया गेट, यूपीएससी के दफ्तर के पीछे, धौलपुर हाउस के पीछे जैसलमेर हाउस है। तो वहाँ मेरी नौकरी लगी, और इतना जश्न मनाया घर में जैसे गवर्नर लग गए होते हैं। तो बहुत बड़ी बात थी, सरकारी नौकरी मिलना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। सोशल स्टेटस और फाइनेंशियली इम्प्रूव हो गए। जी। उन दिनों सैलरी कैश, नगद नोट, नए नोट मिला करते थे, और मुझे याद है 166 रुपये जब मुझे पहली सैलरी मिली, तो आई वाज सो हैप्पी। मैंने कहा लो भी आज तो कमाल हो गया। एनीवे, आई केम एंड गेव इट टू माय मदर। माय फादर वाज ऑलवेज मोटिवेटिंग फैक्टर बिहाइंड इट। ही सेड, बेटा ये तो बिगनिंग है, जी। यहाँ नहीं, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, और देख कहाँ कहाँ होते हैं। तो साथ ही इमीडिएटली यूडीसीज़ के एग्ज़ाम, उन दिनों कंपटीशन होते थे, हर बात के लिए कंपटीशन, छोटी नौकरी करनी उसके लिए भी कंपटीशन। एनीवे, तो मैंने बड़ी जगह इम्तहान दिया। तो आई क्वालिफाइड इन 3 प्लेसेस स्ट्रेट अवे। एक आईएसआई में, एक आईएसआई इज़ नाउ कॉल्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इट वाज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम। एक एसटीसी में, एक एमएमटीसी, दे वर ऑल एट इंडियन दैट बहादुर शाह सफर मार्ग पे थी वो। और एक में मेरा 3rd रैंक था, एक में मेरा 7th रैंक था, एक में मेरा 14th रैंक था। 14th रैंक से पहले कॉल आई आईएसआई, पर उन्होंने कहा जी आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा। आई गेव इट अप, आई सेड टू हेल्प विद यू, आई कांट। So between STC, MMTC called me first, and I joined, and it was within 2 months of my joining as LDC that I got this job, and I moved over, and my salary jumped to 220 rupees straight away. A big milestone. Very big. And let me revert to Jaisalmer House. Years later, when I became Director General of Civil Defence in the rank of Full Secretary to the Government of India, my office was back in Jaisalmer House. Yes. And I was on the 1st floor, my office was on the 1st floor, huge, very bigger room than this I had. And earlier, of course, I was sitting in a corner there. And I think almost 38 years it took to climb 36 steps. Yes. But here again, luck helps you, hard work helps you, lot of people help you. Yes. When I was LDC, my section officer was there, one, Dinanath
Asija, I remember that gentleman. In government offices, I'm afraid today also is the same atmosphere. People don't work. They go have a cup of tea, this, that, waste your time, come back. So my senior colleagues, this soon enough within one day they got hold of me and they asked me to come to canteen, this, that and all, and not bother about work. So this gentleman called me 3-4 days later in the evening. He said, young man, don't follow them. You have a long way to go. He was one which I followed. Years later, when I was a DIG Puja in CRPF, he came all the way to meet me. There were no mobiles then. I don't know how he located me. He was settled in Canada. So it was very sweet of him. He came to meet me and he was happy that his advice was useful to me. Anyway, so that is how I jumped to UDC. I was UDC in MMTC, that is Upper Division Clerk. I was very happy in that job for one reason and very unhappy for another reason. First, let me tell you why I was very happy. You will not believe, in those days, I used to travel in a Mercedes car with a chauffeur-driven driver with uniform, in uniform. I used to make bills for this shipping, lading bills as they used to call it, and I used to go to Parliament Street, and these STC, MMTC, they have lot of confiscated cars and they were using these. And I was so unhappy that I was in the accounts branch and I knew nothing about maths, nothing about accounts till date. I don't know about it. And these people were very unhappy with me, my bosses. Then why and how I moved? Well, first let me complete this. Then of course simultaneously the assistant grade competition also was held, which is today called assistant section officer. Okay. And I think this is also held by SSB now, not by the UPSC any longer. So there, why I stuck to that was one of my friends was getting married. Marriage was in Dehradun, Bharat was to go from Delhi. I had to go. My bosses there in the office refused to give me leave. I resigned. You resigned? I resigned. Went home, told my mother. She was so unhappy with me. She said, लोगों को नौकरी नहीं मिलती, तेरा दिमाग खराब है. एक शादी And your father will beat you up. तू कल जाओ, किसी तरह वापस ले ले अपना resignation. खैर गया, अब करूँ क्या? And I was unhappy with the work also. The moment I landed in office, there was a lady officer, I. Indra, from Indian and Audit and Account Service. She was the boss, senior officer. She sent for me. I was totally terrified. कि अभी इतना senior officer मुझे क्यों बुला? So anyway, I went, डरता मैं गया, नमस्ते किया. She asked me to sit down. She told me कि why have you resigned? I said, my friend is getting married. They are not giving me leave. And he has told me he'll give me full salary till I get the next job. So I resigned. She said, you want leave? I said, yes. She tore my resignation paper, threw it in the waste paper basket and said, leave is granted. Then I got a little encouraged. I said, ma'am, please transfer me also out of this section. I don't know accounts. She said, okay, you come back. We'll see it. And as I was leaving the room, she called me back. Come back. I was hardly 20 years old. So I went back and again terrified कि फिर कुछ गड़बड़ हो गया. She said, why don't you try for the civil services? Oh. I did not know what the hell it was. Yes. I said, okay, ma'am. I was in a hurry to get out. Yes. जान छूटी, नौकरी भी बच गई, उनसे भी जान छूटी, शादी में भी जाना है, तो I ran away. And then I tried for the assistant grade competition. Okay. Every year they used to take place. Like now you have civil services. Yes. I think SSB also holds competitions every day, every year. And then again I got a very good rank. I think 27th or something all India rank. And I got posted to the railway board. And it was after about, I think,
a year and a half or 2 years at best, September 65 to September 67, I think, yeah, something like that. So I moved to Railway Board as assistant, and shall I tell you salary? I got Yes. 380 rupees now. Oh, a jump from 220. Anyway, so that is how, and while there I tried for this civil services. I had 32 of my batchmates. I told everyone to try for this. Okay. They all said nothing doing, except one colleague of mine. They said, "Tera dimag kharab hai, so tough, this, that and all." But my father was goading me, "No, you try, nothing will happen." My section officer was very cooperative. He would give me leave to study. I'll go to the India Gate lawns, study there. And then first chance I cleared it. And in December 67 I joined the IPS. That's what it is. So you had asked me the question, the motivation was to go up in life. Yes. The driving force was my father. And by now perhaps I had also seen the fruits of hard work. That is how. And God also helps. Yeah. सर जैसा अभी आपने बताया कि आपने हर एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो मुझे डाउट हो रहा है कि जब आपने कहा था आई वाज वेरी बैड इन स्टडीज, हाँ, आई वॉज बैड इन स्टडीज। नहीं, वो मैंने आपसे कहा ना कि स्कूल का आई हैड रेफर टू द माई साइंस एंड ऑल दैट बिजनेस। देखिए, हर कोई हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता है। वी डोंट रियलाइज। पेरेंट्स बहुत पुश करते थे, अभी भी करते होंगे, आई डोंट नो रियली, लेकिन आई थिंक इट शुड बी लेफ्ट टू द चिल्ड्रन एज टू what interest they have, in what field they have. This is very, very important. And it matters a lot then again that. But of course, I learned by then hard work is very important, sincerity is very important. But I had got lot of help at every step in life. Friends, family, my bosses, my colleagues, juniors, seniors, everyone. So that is what it is. And yeah, you said it took about 3 years. Yes, absolutely. From 64 May to I think July 64 or something, the result comes. Roughly, I think, I don't know when the result comes now, but it used to be around July at that time. Yeah. Sir, you joined the Indian Police Service in 1967 and you served till 2004. सर, आपके इस पुलिस करियर के दौरान क्या इवॉल्व हुई है पुलिस सर्विसेज, be it in terms of technology, training or tackling new age crimes? पूजा, इस लंबी सी देखा जाए तो इनिंग्स में, और अब उसके बाद भी 20 साल हो गए, 21 साल हो गए, अब तो मुझे भी रिटायर हुए, चेंजेस बहुत हुए हैं, बहुत चेंजेस भी हुए हैं। कुछ अच्छे हुए हैं, कुछ अच्छे नहीं भी हुए हैं। आस्क मी, पहले अच्छी बात करते हैं। पुलिस में टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है, बहुत आ गई, आगे से ज़्यादा आ गई है, अच्छी बात है। और आजकल तो साइबर क्राइम वगैरह पता नहीं क्या क्या हो रहा है। इट्स बिकमिंग टफ फॉर द पुलिसमैन। पुलिस की सहूलतें भी बढ़ी हैं आगे से काफ़ी ज़्यादा, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, वायरलेस हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, तरह तरह का ये सहूलतें आ गई हैं। पुलिसमैन की सैलरी भी इम्प्रूव हुई है, आगे से काफ़ी ज़्यादा हुई है। और ये तो हुआ जहाँ तक कि ताल्लुक़ है जो अच्छी बातों का, ब्रॉडली स्पीकिंग, देयर मैनी मोर वन कैन काउंट। लेकिन जो चीज़ें ख़राब हुई हैं वो ये हुई हैं कि पुलिस हमेशा से क्रिमिनल के पीछे भागती रही है। क्रिमिनल को एडवांटेज होता है, वो आज टेक्नोलॉजी आई कल अडॉप्ट कर लेगा, आपको टाइम लगेगा। तो वो गैप जो है वो वैसे का वैसा ही है आज भी। इसमें कुछ मजबूरियाँ भी हैं। अब मैं अगर 30 साल पहले भर्ती हुआ, मेरे ज़माने में कंप्यूटर था ही नहीं, तो हाउ कैन आई टैकल समबडी टुडे हु इज़ कमिटिंग क्राइम विद अ कंप्यूटर। एक तो ये इश्यूज़ हैं ही हैं। दूसरा, पॉलिटिसाइजेशन बहुत हो गया पुलिस का। आज पुलिस जो है वो पॉलिटिशियंस की प्राइवेट आर्मी बन गई है। हर स्टेट पुलिस, जैसे स्टेट गवर्नमेंट बदलती है, तो वही पुलिस जो आज आपकी पुलिस है वो कल दूसरे की पुलिस हो जाती है। और गलत काम होते हैं,
मिल के भी होते हैं। तो वो एक तो ये पॉलिटिकल बड़ा नुकसान हुआ। जो मेरा ये मानना है कि जब हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर पुलिस मस्ट गो, ये बहुत ज़रूरी है। वी शुड बी आंसरेबल टू द लॉ और टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। वो कई देशों में है, आप देखिए प्रेसिडेंट्स तक से सवाल पूछे जाते हैं। यूके में पीछे हुआ, अमेरिका में हुआ, क्लिंटन से सवाल पूछे गए जब वो प्रेसिडेंट थे। ऑल दैट हैपन्स। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और दूसरा ये हुआ कि आबादी इतनी बढ़ गई है कि उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया तो आबादी होगी 50-60 करोड़, आज 140 करोड़ आबादी है। तो उस हिसाब से पुलिस का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा, उस हिसाब से पुलिस स्टेशन नहीं बढ़े, उस हिसाब से जो अकम्पनिंग चीज़ें बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी, फोरेंसिक साइंस उस हिसाब से नहीं बढ़ी, गाड़ियाँ उस हिसाब से नहीं बढ़ी। आज भी आप हैरान होंगी कि ऐसे कई पुलिस स्टेशन हैं जिनके पास बिल्डिंग नहीं है, वायरलेस नहीं है, मोबाइल फ़ोन की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए, गाड़ियाँ नहीं। और क्राइम नेचुरली प्रोपोर्शनेट बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से कन्विक्शन जो है वो कम होता जा रहा है। तो पुलिस अगर इसको सबको देखा जाए लेखा जोखा करके तो मैं कहूँगा कि इन्हें भी हल्की सी पुलिस शायद अभी भी वहीं है। टेक्नोलॉजी क्रिमिनल्स ने लिया तो पुलिस ने भी ले ली जी। तो ओवरऑल मतलब यहाँ से आके यहाँ आ गए, बट वहीं पे हैं हम लोग, को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है जब तक कि ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगे। और पुलिस, मेरा मानना है कि ये देश अगर एक आज चल रहा है तो पुलिस की वजह से चल रहा है। अगर ये कोई डेवलपमेंट वगैरह की हम बात करते हैं विकसित भारत की, जब तक पुलिस अपना काम ढंग से नहीं करेगी तब तक नहीं होगा। और पुलिस तभी करेगी जब पुलिस को सारे वेयर विदाल जो हैं वो मुहैया कराए जाएंगे। सर, जैसे अभी हमने क्राइम्स और पुलिस ऑफिसर और टेक्नोलॉजी वगैरह की बात करी, सर जब एक पुलिस ऑफिसर क्राइम इन्वेस्टिगेट करता है, डू दे फेस सिचुएशन जहाँ पे दे आर कॉन्फिडेंट कि इसने क्राइम किया है बट ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस दे गेट एक्विटेड? सर, इससे पुलिस मोराल पे क्या इफेक्ट पड़ता है एंड इज देयर अ वे टू एड्रेस दिस? देखिए, अगर एविडेंस नहीं मिलता है तो वैसे तो कन्विंस होना जो है वो तो एक इमोशनल इशू हो गया, क्योंकि पुलिस का काम इमोशन पे जाना तो है नहीं। अगर हाँ, लेकिन ऐसे कई बार होता है कि कुछ एविडेंस मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ एविडेंस से लगता है तो फील होता है। और एविडेंस बगैर तो पुलिस आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि पुलिस का काम इंस्टेंट जस्टिस तो करना है ही नहीं। तो ऐसे केसेस में सिवाय रिग्रेट के कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन बड़े बड़े जानकार पुलिस अफसरों का ये मानना है कि कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं होता दुनिया में जो अपना कोई सुराग पीछे नहीं छोड़ के जाता। पर वो डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत से आप उसको ढूंढते हैं, कितनी एफर्ट करते हैं, और सक्सेस होने के चांसेस जनरली बहुत ब्राइट होते हैं। सर, अभी जैसे हम क्राइम की बात कर रहे हैं तो कुछ रीसेंट ईयर्स में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और हाई प्रोफाइल केसेस को लेकर एक नाम बहुत लिंक हो रहा है, दैट इज़ लॉरेंस बिश्नोई। सर, एज अ रिटायर्ड IPS ऑफिसर, हाउ डू यू व्यू द चैलेंजेस ऑफ टैकलिंग सच इमर्जिंग गैंग नेटवर्क्स इन इंडिया, स्पेशली जब वो अक्रॉस स्टेट तो ऑपरेट कर ही रहे हैं, वो इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर रहे हैं? पूजा, नेशनली करने के लिए स्टेट पुलिस फोर्सेस का आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पुलिस इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट। कोई फेडरल लॉ अभी है नहीं, CBI भी इज़ नॉट अंडर एनी एक्ट। CBI को आप जानते हैं कि तभी जा सकती है किसी स्टेट में अगर वो स्टेट कंसेंट दे तो। हालांकि NIA है, NIA को अब है, वो जा सकते हैं, कर सकते हैं। और पुलिस को थोड़ी बहुत ही पावर्स हैं भी कि भाई अगर यहाँ कोई क्राइम हुआ है दिल्ली में, और दिल्ली वाला अगर क्रिमिनल बॉम्बे गया या कहीं गया तो आई कैन गो देयर, वहाँ पे बात ही हो सकती है। सिमिलरली इंटरनेशनल के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हालांकि साधन है, इंटरपोल है, ये है वो है, लेकिन एक होता है कि इंटरपोल वगैरह तो हो गया लंबा रास्ता, या किसी कंट्री को ना मिलता हो, दैट इज़ हाउ इट इज़। अदरवाइज़ अभी कनाडा वाला एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, अब हमारे कितने टेररिस्ट वहाँ पे हैं,
लेकिन वो मानते ही नहीं इस बात को। वो कहते हैं होगा होगा, आपके यहाँ होगा, हमारे यहाँ नहीं है। तो जब तक कोऑपरेशन नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है ये। और गैंग्स हो तो और भी वर्ष है, क्योंकि इंडिविजुअल तो ठीक है, चलो कर भी लिया उसने, लेकिन जहाँ गैंग्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि अब गैंग्स भी टेक्नोलॉजी के सहारे इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। एक तो वो इंटरनेशनली स्प्रेड है, और दूसरा तो अब आप आम सुनते हैं तिहाड़ जेल से कोई एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा है, कुछ कर रहा है, उसका अब आप क्या एविडेंस, सिवाय फ़ोन के तो कोई एविडेंस कोई है ही नहीं। फ़ोन भी ना मिले, अब वो क्यों ना मिले उसका कारण फिर अगेन वही करप्शन है, ये है वो है। तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन पुलिस हैज़ डन वेरी वेल ऑल दीज ईयर्स। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। देखिए, जनता की नज़रों में फेलियर आती है सिर्फ, 99 केसेस में पुलिस सक्सीड्स, एक फेलियर होता तो हाईलाइट हो जाता है। खैर होना भी चाहिए अगर फेलियर है, सक्सेस हाईलाइट नहीं हो जाता है, पर इट्स ए कांस्टेंट चैलेंज एंड द इंडियन पुलिस इज़ वर्किंग कॉन्स्टेंटली ऑन दैट। इसी हिसाब से नए कानून भी आते हैं, नई टेक्नोलॉजी भी गवर्नमेंट देती है, ऑल दैट हैपन्स। सर, जैसे अभी आपने कनाडा की बात करी, सो रिसेंटली इंडिया और कनाडा के बीच में काफ़ी टेंशन्स बढ़ गई हैं आफ्टर कनाडा हैज़ एक्यूज्ड इंडिया ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन किलिंग ऑफ अ खालिस्तानी लीडर ऑन कैनेडियन सॉइल। सर, कितने क्रेडिबल हैं ये एक्यूजेशंस, एंड रियली डज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया, दैट इज़ रॉ, कंडक्ट सच कोवर्ट ऑपरेशंस अब्रॉड? क्रेडिबल होते तो एविडेंस देती ना कनाडा गवर्नमेंट, दिया तो है नहीं। ये भी बात है, हाँ। क्रेडिबल है ही नहीं बिल्कुल, ये तो सिर्फ कहने की बात है। देखिए, किसी दूसरे की सॉइल पे जाके क्राइम करना तो क्राइम ही हो गया ना। अगर किसी को आप मार रहे हो जाके उस देश के कानून के हिसाब से, तो ये तो क्राइम हुआ। वाई शुड इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडल्ज इन क्राइम? अब कोई इंडिविजुअल किसी देश भक्ति के जोश में जाके कहीं कुछ कर दे तो उसके लिए भारत सरकार तो जिम्मेवार नहीं है। सर, आर यू अवेयर ऑफ एनी सच ऑपरेशंस इन योर टाइम? नो, नॉट एट ऑल। लेकिन हम पे पता है कि पाकिस्तानी आगे हमारे यहाँ बहुत करते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी जानकारी, हम सब लोगों को जानकारी है, मीडिया में आता है। मैं जम्मू कश्मीर में भी पोस्टेड रहा हूँ। आई वॉज IGBSF वंस अपॉन ए टाइम। वो आते हैं, उनके आज भी आते हैं लोग, ओपनली हम जानते हैं कि जो क्राइम कर रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं, एविडेंस होता है उनका, आई कार्ड वगैरह होता है। हमारी पॉलिसी कभी भारत देश की नहीं रही, जनरली किसी देश की भी नहीं होती, कुछ देशों की है, और मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है। और हमारे देश को भी ये पॉलिसी ओपन बनानी चाहिए, ओपनली डिक्लेयर करनी चाहिए। अमेरिका, इज़राइल, ये ऐसे देश हैं, ये कहते हैं कि किसी भी देश में अगर हमारा दुश्मन होगा तो वहाँ जाके उसको हम मारेंगे, हम कत्ल करेंगे हम उसको। अब जैसे अमेरिका ने अभी बात की, पनून की, इसी सिलसिले में जिक्र आया, वो जिक्र तो करते हैं, लेकिन अमेरिका ने अगर किसी को मारना होगा, उनका कोई क्रिमिनल यहाँ होगा तो आके मार देंगे। वो पाकिस्तान में जाके करते हैं, लेकिन जो पावरफुल होता है उसके अपने नियम होते हैं, दूसरों के नियम लागू नहीं होते। सर, अभी हम करंट गोइंग इवेंट्स की थोड़ी बात करें तो देयर इज़ दिस स्टेट दैट हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर ऑलमोस्ट 2 years नाउ, दैट इज़ मणिपुर। वहाँ की सिचुएशन अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, एंड एज समवन हु हैज सर्व्ड एज अ होम सेक्रेटरी, DIG प्रिजन, DGP ओवर देयर, यू हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड रियलिटी ओवर देयर। सर, व्हाट आर द कोर रीजंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? पूजा, मणिपुर आज से नहीं, सन 80 से तो मैं जानता हूँ जी, ये हमेशा वायलेंस की चपेट में रहा है। मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी 1980 में, जब मैं DIG था जी, तब ये हाल था कि इम्फाल जो कैपिटल है उसकी गलियों में रोज़ गोलियां चलती थी, गलियों में शहर की। मेरे घर से 500 मीटर के फासले पे गोलियां चलती थी। तो ये पोजीशन थी बड़ी ख़राब। इंसर्जेंट ग्रुप्स का बड़ा ज़माना था उस वक्त। आज भी उनके नाम चल रहे हैं, PLA वगैरह चल रहे हैं। उस वक़्त कई हालात से हम लोग गुज़रे। बाद में जब मैं दोबारा गया तो हम लोगों ने खैर इम्फाल को ठीक किया, हम लोग उनके घरों में घुस गए। बदमाश को ठीक करने का एक ही तरीका था, उसके घर में घुस जाओ। तो वी डिड दैट, वी ओपन पुलिस पोस्ट देयर एनीवे। उसके बाद ये हुआ कि मैं जब दोबारा गया IG इंटेलिजेंस, तो उसके बाद एक दिन 22 टेररिस्ट जेल से भाग गए।
और फिर सरकार ने मुझे आईजी प्रिजन लगा दिया वहाँ पे। तो उस वक़्त एक पीएलए का सबसे टॉप लीडर था विशेश्वर सिंह, वो इलाहाबाद में था, और उसको कुछ 4-5 टेररिस्ट इलाहाबाद नैनी जेल में इसलिए रखे हुए थे कि उनको डर था इम्फाल की जेल से कहीं भाग ना जाए। तो मैंने कहा कि नहीं, वापस लाओ उनको, मैं देखता हूँ उनको। तो वापस ले आए। उससे फिर हमारी दोस्ती हो गई उससे। पहले उसने बड़ी कंप्लेंट्स की मेरे खिलाफ़, खैर एनीवे, फिर उससे मैंने पूरी कहानी सुनी इनकी। और फिर मैंने एक किताब लिखी उस वक्त, दैट वाज माय सेकंड और थर्ड बुक, रेबल्स ऑफ द वैली। उस किताब में मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये सिचुएशन कभी सॉल्व नहीं होगी, और आज भी ये बात सही है। पिछले साल से जो चल रहा है वो एक डिफरेंट डायमेंशन है, जिसमें ये लोग भी गंगी बहता, कहते हैं ना, गंगा में हाथ धो रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। आज ये है कि कम्युनिटीज़ के बीच कन्फ्लिक्ट हो गया है। सिचुएशन कई कारणों से है। सबसे बड़ा कारण मेरे हिसाब से ड्रग लॉर्ड्स का है। आप जानते होंगे ये गोल्डन ट्रायंगल के टिप पे है मणिपुर, और हमेशा से ड्रग का रूट रहा है, हमेशा से। और रूबी स्टोन्स भी आते हैं, वेपन्स भी आते हैं, ऑल दैट कीप्स ऑन कमिंग। तो तब भी था, अब भी है। म्यांमार में हालत ख़राब है, तो उस वजह से ड्रग लॉर्ड्स कई लोग इधर आ गए। यहाँ के लोग उनके कम्युनिटी के हैं, तो उनको उन्होंने मिला लिया। ये लोग भी कल्टीवेशन में जुट गए। सरकार ने मना किया, ढूंढा, तो उससे वो और खफा हो गए। उनको एक बहाना चाहिए था कि कैसे इस बात को उछाला जाए। ड्रग लॉर्ड्स और हैविंग 60,000 crores, they pumped into the whole thing. They are such a big money. Yes. More budget than the government of Manipur they have. Yes. तो हाई कोर्ट के एक जज थे साउथ इंडिया से, चेन्नई से, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि स्टेट गवर्नमेंट शुड कंसिडर गिविंग एसटी स्टेटस टू मैथीज एंड मेक ए रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। दे डिड नॉट से यू गिव इट। कंसिडरिंग मीन्स व्हाट? इन लोगों ने उसको मिस रिप्रेजेंट करके, इनको बहाना चाहिए था लड़ाई करने का। तो इन्होंने ये कहा कि हमारी तो नौकरियां चली जाएंगी, हमें मिलती है एसटी की नौकरी, इनको भी मिलेगी, और फिर लैंड का इशू है, हम ये हिल्स में आ जाएंगे, और तरह तरह की और भी कई बातें इसके साथ जुड़ गई। बीच में ये इंसर्जेंट्स इकट्ठे हो गए सब तरफ के कि चलो हम भी कर लेते हैं। दैट इज़ वाई द सिचुएशन हैज़ बिकम बैड। Unfortunately, my frank view is it has not been handled well by the government of India as well as by the state government. इसको बड़ी ढील दी गई। डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए था, आज भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये करेंगे तो मुझे उम्मीद है ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कोई और तरह के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं, ये हो नहीं रहा, और ये मैं अक्सर बात टीवी चैनल्स पे कहता रहता हूँ। सर, जैसा भी आपने कहा कि डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ आर्मी, पैरामिलिट्री, स्टेट पुलिस एंड नाउ इवन द एनआईए ओवर देयर, नॉर्मलसी नहीं आई है, कहीं ना कहीं कुछ चूक हो रही है। सो व्हाट मेजर्स डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट टू ब्रिंग लास्टिंग पीस? पूजा, लॉ एंड ऑर्डर, वायलेंस कंटेन करना एक एस्पेक्ट होता है सिर्फ पूरी सिचुएशन का। पुलिस का, आर्मी का क्या काम है कि वायलेंस बंद की जाए। उनके मसले तो पुलिस हल नहीं कर सकती, मसले तो सरकार को हल करने हैं ना, कि भी उनका कोई भी इशू है उसको हल किया जाए। तो मेरा ये मानना है, पहले ऑफ कोर्स वायलेंस बड़ा स्ट्रांगली दे शुड हैंडल इट, कंट्रोल इट थॉरली। उसके बाद जो है इनको जो और स्टेप्स लेने हैं वो ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है मेरे हिसाब से उस पर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए। मैं तो मानता हूँ प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए वहाँ पे। बेस्ट ऑफिसर्स बाहर से ले जाने चाहिए हर डिपार्टमेंट के। वहाँ के लोकल अफसर बड़े मिले हुए हैं, तो मालूम होगा 4,500 से ज़्यादा हथियार दिए गए हैं इंसर्जेंट्स को या इन ग्रुप्स को। कुछ अफसरों ने अपनी कम्युनिटीज़ को बांट दिए हैं, अफसरों में भी। तो ऐसे अफसर बाहर निकाले जाने चाहिए, बाहर से अफसर जाने चाहिए। ब्यूरोक्रेसी जो है शुड बी न्यूट्रल। और एक तो ये काम हो, फिर उसमें हर डिपार्टमेंट में काम हो, फिर पीस कमेटीज। पीस तो बहुत ज़रूरी है ही, पीस तो ज़रूरी है ही। अल्टीमेटली आप कितना कुछ कर लोगे। तो उसके लिए कम्युनिटी लीडर से बात करना, उनको आगे लाना, उनका करना। कुछ छोटी मोटी डिमांड्स होती हैं उनकी पूरी की जाए, और उनकी डिमांड्स बड़ी जेन्युइन हैं कईयों की। अब कुकीज़ ये कहते हैं कि साहब हम लोग चूड़ा चांदपुर एक जगह है इम्फाल से कोई थोड़ी दूर है,
अब वो कह रहे हैं साहब हम इलाज कराने भी नहीं जा सकते, वी नीड हेलीकॉप्टर सर्विस। कम्युनिटीज़ ऐसे रह रही हैं जैसे किले बना लिए उन्होंने, आप ये इधर नहीं जा सकते, वो इधर नहीं जा सकते। तो हालत बहुत ख़राब है। तो इस तरह करके 3 4 5 स्टेप अगर लिए जाएं तो श्योरली इट कैन बी सॉर्टेड आउट, लेकिन फुल अटेंशन चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये भी मानना है कि भारत सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मणिपुर जैसी छोटी सी स्टेट को इतनी अटेंशन दे सके, और सारे नॉर्थ ईस्ट को। और ये आज नहीं, हमेशा से चला आ रहा है। पिछले 10 सालों में ज़रूर तवज्जो दी गई है, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। सर, मणिपुर का एक किस्सा है, आप जब आईजी प्रिजन थे वहाँ पे, वेयर यू डिडंट अलाउ 2 MLAs टू मीट द प्रिजनर्स, कैन यू शेयर दैट स्टोरी? बड़ा किस्सा है, मैंने आपको बताया जब 22 टेररिस्ट भाग के चले गए, एक दिन टनल खोद के चले गए, टॉयलेट से टनल खोद के भाग गए। शाम की बात है, 7 बजे की, 12 बजे कैबिनेट मीटिंग हुई। इन्होंने मुझे रात को आईजी प्रिजन लगा दिया, मैं डीआईजी ऑपरेशंस था। सुबह होम मिनिस्टर आ रहे थे इंडिया के, वहाँ ज्ञानी जैल सिंह जी होम मिनिस्टर थे, और मैं जा रहा था, एक जगह है वहाँ पे तमेंगलोंग करके, दूर काफ़ी। आप मानेंगी 40 किलोमीटर का रास्ता मुझे एम्बेसडर कार में कवर करने के लिए 7 घंटे लगे। 7 घंटे। सड़क की हालत आप जान सकती हैं। और पहली बार एम्बेसडर कार वहाँ गई थी, मैं लेके गया था। इनको ये डर था कि सरकार कहीं डिसमिस ना हो जाए, होम मिनिस्टर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा भी जितने अफसर हैं उनकी लिस्ट बनाओ, उसमें से ढूंढो किसको लगाया जा सकता है। पता नहीं उनको मैं ही समझ में आया, उन्होंने मुझे लगा दिया। तो खैर अगले दिन वहाँ गए, और वो तो फॉर्मेलिटी करनी थी, होम मिनिस्टर आ रहे थे, मिले मिले उनसे, दिस दैट हैपेंड। उसके बाद फिर जब ये आए तो वहाँ पे असल में कोई एक जेल मैनुअल होता है पूजा, हर जेल का कोई मैनुअल का कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा था, कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा था। तो हमने कहा भी किताब निकालो, किताब में जो लिखा है वो करो। तो एमएलएस की बात बाद में सुनाता हूँ, क्विकली सुना दूँ। पहले ये हो कि एक प्रिजनर ये आइटम्स रख सकता है। अच्छा। तो हमने कहा तलाशी लो, जो फालतू चीज़ें निकालो। इस बड़े कमरे से बड़ा ढेर लग गया वहाँ, और हमारे कमांडेंट थे करुणामय सिंह लोकल। पूछे सर क्या करना है इसका, मैंने कहा तुम बताओ। क्या था, आग लगा देते हैं। अगले दिन सुबह 2 एमएलए साहब आ गए। अच्छा। कोर्ट्स में कंप्लेंट हो गई, ये किया वो किया, ज्यादती कर रहे हैं, मार रहे हैं, जैसा। तो उन्होंने कहा कि जी हमें मिलना है, 2 प्रिजनर्स से मिलना है, 4 से बात करनी है, ये वो। हमने कहा भाई मैनुअल निकालो। उन्होंने कहा जी नहीं, मैनुअल के मुताबिक तो जेल का टाइम होता है, इस टाइम पे लोग मिल सकते हैं। अच्छा, एमएलए तो वैसे तो रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, अगर वो असेंबली की तरफ से भेजे गए हों तो उनको हक है, लेकिन प्राइवेट कैपेसिटी में अगर आएंगे तो हक नहीं है। तो मैं समझता हूँ वो नॉर्मल सिटीजन्स हैं। तो मैंने मना कर दिया। मेरे सुपरिटेंडेंट ने पूछा कि सर ये जाना चाहते हैं, मैं कहा नहीं, मना कर दो। तो उन्होंने दूसरे दिन मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन असेंबली में कर दिया। बड़ा हंगामा हुआ अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच, जैसे लड़ाई वड़ाई होती। फिर मुझे स्पीकर ने बुलाया और ये कहा कि आप माफ़ी मांगो। मैंने कहा मैं किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ, मैंने तो कुछ किया नहीं। कहने लगे आपको बुलाया जाएगा, असेंबली में जेल वेल हो जाएगी आपको। मैंने कहा हो जाए तो मैंने कहा यहीं रह लेंगे, जहाँ आईजी प्रिजन है वहाँ रख लेना आप। जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। और स्पीकर समझदार थे, उन्होंने कहा अच्छा मैं उनसे ये कह दूं कि आपने मेरे से माफ़ी मांग ली है तो चलेगा। मैंने कहा जी आप जिसको जो मर्ज़ी कहते फिर मुझे क्या पता, मतलब मेरा तो कुछ लेना देना, मैंने आपसे माफ़ी नहीं मांगी, ना मैंने उनसे माफ़ी मांगनी। तो उन्होंने ऐसे कह के मामले को रफा दफा किया। अब ये बात फिर वहीं आती है कि ऑफिसर्स जो है ना, कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कोऑपरेट कर जाते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, कानून को तोड़ते हुए, इसी वजह से नुकसान होता है। Sir, such an adventurous as well as inspiring story. Moving on to the next question, sir. 1973 में आप त्रिपुरा में posted थे as SP CID for 3 years, and again towards the end of your career in 2000, you went back there in the role of a DGP. Sir, उस टाइम पे इंसर्जेंसी बिल्कुल अपने पीक पर थी। क्या रीजंस थे कि इतना सर्ज हुआ वहाँ पे, and what measures as a DGP did you take to contain that?
पूजा इंसर्जेंसी वहाँ क्यों थी? हर जगह के हालात अलग होते हैं। त्रिपुरा एक ट्राइबल राज्य था, ट्राइबल्स रहते थे, ट्राइबल राजा थे वहाँ के। आप हैरान होंगे कि उनकी जो राजा जो चले आ रही थी, जो लीनिएज उनकी महाभारत के ज़माने से चली आ रही थी। महाभारत में जिक्र है राजा त्रिपुरा के राजा का। इतनी पुरानी थी वो जो गद्दी चली आ रही थी। तो इंसर्जेंसी वहाँ इसलिए शुरू हुई कि त्रिपुरा के जो महाराजा थे वो ईस्ट पाकिस्तान, जो पहले इंडिया था, पहले बांग्लादेश से पहले ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ एक बहुत बड़ी ज़मीन थी त्रिपुरा के साथ लगती हुई, जिसको चकला रोशनाबाद कहते थे जी। वो उसके ज़मींदार थे। वो जी। ज़मींदार थे, उनकी नौकरी में हज़ारों एम्प्लॉइज़ थे, वो सारे बंगाली हिंदूज थे। तो जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, तो उस वक़्त वो लोग कहाँ जाते तुम्हें मालूम है कि भागना पड़ा हिंदुओं को। वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब से भी भागना पड़ा, ईस्ट ऑफ बंगाल से भी भागना पड़ा। तो उन लोगों ने सोचा भाई यही हमारे महाराजा हैं तो हम यहाँ चले जाते हैं। तो वो सारे इधर आ गए, इधर आ गए। उनकी नंबर ज़्यादा थी, तो ट्राइबल्स अपने ही देश में, अपने ही राज्य में माइनॉरिटी हो गए। जी। अब ये लोग जब बाहर से आए थे तो इन्होंने उनकी धीरे धीरे नौकरियों पे, ज़मीन पे, जी। ट्रेड पे, कॉमर्स पे, हर चीज़ पे कब्जा इन्होंने कर लिया। अब ये लोग क्या करते हैं, मतलब ये लोगों ने हाथ जोड़े, कहा कि भाई साहब हमारे साथ ऐसा मत करो, हमारा सब कुछ ले लिया। आपके घर में कोई घुसा है, आप क्या करेंगे? आप हाथ पैर जोड़ेंगे, पहले कहेंगे बुझाओ, जब वो नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? अब आप भी हथियार उठाएंगे, कुछ करेंगे। तो इंसर्जेंसी का फ्रैंकली मूल कारण तो ये रहा, जो कारण आज भी है। लेकिन अब ये कि मजबूरी ऐसी होगी कि वो लोग जाएं कहाँ? जी। एक वो भी एक अनदर सिचुएशन है। उस वक़्त देश नया नया बना था, भारत सरकार के पास किसी की फुर्सत नहीं थी इन चीज़ों को देखे। कुछ लोग इधर उधर गए, बसाए भी गए, लेकिन यहाँ इसका मूल कारण तो ये था। जी। तो ये हमेशा ये कहते रहे कि साहब अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये लोग हिल्स में चले गए जी। और वहाँ पे वो फिर इंसर्जेंसी शुरू हो गई। नॉर्थ ईस्ट में, सारे नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का माहौल था, तो एक दूसरे से सपोर्ट, हेल्प वगैरह मिलनी शुरू हुई। पहले ईस्ट पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश भी फिर इनकी मदद करने लगा। जी। जो हालात आज हैं बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश एनिमिकल है हमारी तरफ, जी। वहाँ भी 71 के बाद शुरू में उनका प्यार ज़रूर था हमारे साथ, लेकिन वो दुश्मनी उनकी हमेशा हमारे से रही। जी। तब भी थी, जब मैं गया 73 में, तब भी थी। वो थी इसलिए कि अफसर तो वही थे, सारे पाकिस्तानी थे, और वो बांग्लादेशी कहने लगे, लेकिन जो उन्होंने, उनकी जो थिंकिंग थी, जो ब्रेन वॉशिंग थी, उनका जो बात काम करने का तरीका था, वो तो वहीं रहा। जी। तो उन लोगों ने भी इन लोगों को सपोर्ट किया, बल्कि खाली इनको नहीं, इनके दो ग्रुप थे, ATTLF, NLFT, नॉर्थ ईस्ट के सारे इंसर्जेंट्स ग्रुप को उन्होंने अपने यहाँ वो शेल्टर देते थे। तो ये तो रहा मेन कारण। पीक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना बुरा हाल पंजाब का था, आप हैरान होंगे, इतना ही बुरा हाल वहाँ था। लेकिन वहाँ नॉर्थ ईस्ट की खबर तो आज भी नहीं आती, पता ही नहीं चलता वहाँ क्या हो रहा। बहुत बुरा हाल था, रोज़ मर्डर्स, रेप्स, बम फूटना, किडनैपिंग, दैट, बहुत बुरा हाल था। आप हैरान होंगी सुन के कि इसको त्रिपुरा, इसको इंडिया का कैपिटल ऑफ द किडनैपिंग कहा जाता था, त्रिपुरा को। इतना बुरा हाल था। अब किया क्या, सीधा उस पर आते हैं। अब एक आम आदमी को भी नज़र आता है कि भाई ये इंसर्जेंट तो पहाड़ों में थे, जी। पुलिस सड़कों पे थी, वो आते थे, अपना आए, मारपीट किया, क्राइम किया, मर्डर किए, जो किया, आग जलाई, चले गए, आए चले गए। हम लोग कभी पीछे गए नहीं उनके। अब ये कोई, मैंने कोई नई चीज़ इन्वेंशन नहीं की थी, इट वॉज कॉमन टू एवरी, कॉमन नॉलेज टू एवरीवन। अब यह कि पुलिस जाए, अंदर जाएगी, पीछे तभी जाएगी, जब तक उसके घर नहीं जाओगे, उससे झगड़ा नहीं करोगे, कैसे बात बनेगी? अब जाए कौन? जी। तो मैंने वो फैसला लिया, बड़े सालों के बाद फैसला लिया। मेरे अफसर बड़े कुछ कीन थे, कुछ कीन नहीं थे। वो अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे कह रहे थे, मैं उनका कसूर नहीं कहूँगा,
अल्टीमेटली बड़ी दिक्कतों के बाद फिर सारे उसी लाइन पे आ गए और हम लोग जंगलों में चले गए, हमने वहाँ कैंप खोले। और कैंप खोलना एक शब्द में बड़ा आसान है, जी कैंप खोलना, वहाँ जाना, बंदे भेजने, राशन भेजना, सामान भेजना, गाड़ियाँ भेजनी या अकोमोडेशन बनाना, फिर उनको प्रोटेक्शन देना, ये वगैरह। तो एक तो ये मेन स्टेप जो है वो लिया गया, जो सबसे भारी स्टेप था। दूसरा क्या होता है कि एक तो जनरली आपने देखा हो वीआईपीज की प्रोटेक्शन के लिए बड़ी पुलिस लगी हुई है सब जगह सारे देश में, और उसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं होती, ये पुलिस की स्ट्रेंथ से निकाल के देते हैं। अब इंसर्जेंसी एरिया में अगर वो भी आप पुलिस से निकाल लो तो पुलिस के पास बचा क्या? जी तो हमें स्ट्रेंथ की बड़ी ज़रूरत थी। तो हमने चीफ मिनिस्टर साहब से ये कहा, चीफ मिनिस्टर उनका नाम था मानिक सरकार, जी मैं उनकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, बड़ा भक्त हूँ उनका, आज भी भक्त हूँ, और बड़े ईमानदार चीफ मिनिस्टर से वो रहे इंडिया के। उनकी कुछ पॉलिटिकल मजबूरी थी, वो चाहते थे भी ये मसला हल हो जाए। जी तो उनसे मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा साहब ऐसा है कि स्पेशल पुलिस अफसर लगा लेते हैं, जी पुलिस एक्ट में एक प्रावधान है, और मैंने कहा पंजाब में है सब जगह। कहने लगे नहीं मिस्टर वोरा, दिस इज नॉट पंजाब, यहाँ थोड़ी ऐसा होगा। तो मैं उनको धीरे धीरे परसू करता रहा। फिर मैंने उनको और कुछ कहा एक दिन, जी मैंने कहा सर आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपके वर्करों के बच्चों की नौकरी लग जाएगी, जी आपको ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो हंसने लगे। खैर बात उनकी समझ में धीरे धीरे आ गई, और वो एकदम तो नहीं, 2-4 महीने बाद उन पार्टी का ये सिस्टम था सीपीएम का कि रोज़ चीफ मिनिस्टर शाम को पार्टी के दफ्तर जाते थे, दिन में सारा दिन वो दफ्तर बैठते थे, बड़ा डिसिप्लिन था उनका, जी और वहाँ जाके वो चर्चा करते। तो एक दिन रात को 10 बजे फ़ोन आया, भी तुम्हारा ये प्रपोजल अप्रूव्ड है। मुझे ये था कि मुझे जवान लड़के चाहिए भाई, मुझे अब क्या फ़र्क पड़ता है कि वो सीपीएम के हों कि कांग्रेस के हों, मेरी कोई आइडियोलॉजी तो थी नहीं। जी तो फिर हमने भर्ती किए, वही बच्चे जो उनकी मदद कर रहे थे वो हमारी मदद करने लगे। अच्छा, इंसर्जेंट्स तनख्वाह देते हैं, आपको मैं ये बता दूं, आज भी जितने ये इंसर्जेंट्स के साथ लोग जुड़ते हैं ना, उनको सैलरी दी जाती है, उनके परिवार का ख्याल रखा जाता है। तो हमने कहा अब अपने गांव में रहो, हम आपको 1500 रुपये तनख्वाह देंगे, आपका सिर्फ काम है अपने गांव की प्रोटेक्शन करो। तो हमारी जितनी फोर्स गांव की प्रोटेक्शन में लगी हुई थी जी वो रिलीज हो गई, जी उनको हमने ट्रेनिंग दी तो वो करने लगे। फिर वो इंसर्जेंट्स के बारे में सब कुछ जानते थे, जी उन्हीं के साथ काम करते, तो उनसे हमें इंटेलिजेंस मिलने लगी। तो हमने पिन पॉइंटेड ऑपरेशन करने शुरू किए, और धीरे धीरे हमने सिचुएशन पे और भी बड़े स्टेप लिए। इंटेलिजेंस को हमने रीमैप किया, बड़ा कुछ किया, पर मोटे मोटे ये 2-3 काम जो थे जी ये हमारे काम आए, और अल्टीमेटली वो 2-2.5 साल के अंदर 25 साल पुरानी इंसर्जेंसी जो है हम लोग बड़े अच्छे से कंट्रोल कर पाए। कंट्रोल मतलब वायलेंस कंट्रोल कर पाए। मैं उसी मुद्दे पे आता हूँ, उनके इश्यूज तो वही रहे। फिर मैंने उस पर किताब लिखी, त्रिपुरा's ब्रेव हार्ट्स, द सक्सेस स्टोरी ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी ऑफ त्रिपुरा पुलिस, द ब्रेव हार्ट्स। हिंदुस्तान में 3 पुलिस फोर्सेस सिर्फ ऐसी हैं जिन्होंने खुद लीड करके इंसर्जेंसी को कंट्रोल किया है। एक तो पंजाब पुलिस, जी एक त्रिपुरा पुलिस, और एक आंध्रा पुलिस ने नक्सलाइट्स को कंट्रोल किया थ्रू ग्रे हाउंड्स। जी तो इट इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ पुलिस विच इज़ अननोन। बल्कि मेरे एक बड़े सीनियर कुलीग ने एक बार कहा कि दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन चैप्टर्स ऑफ इंडियन पुलिस विच रिमेन्स अननोन टू द पब्लिक। कोई वही कारण है कि आप दूर हैं, नॉर्थ ईस्ट है, इस वजह से है। और मुझे एक दिन बड़ी हंसी आई जब एक अखबार ने ये लिखा, कॉल्ड मी, यहाँ हिंदुस्तान टाइम या किसी पेपर का था, मैगजीन सेक्शन था, दे कॉल्ड मी द केपीएस गिल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट और समथिंग लाइक दैट। केपीएस गिल के साथ मैंने बड़ा काम किया है पंजाब में, दिल्ली में, तो एनीवे तो उनसे भी बड़ा सीखा हमने। तो दैट वाज इट पूजा। Such remarkable works for the generations to know, sir. हाँ, लाखों लोगों को भी पीस मिली, सिक्योरिटी मिली। इसके बड़े फॉल आउट होते हैं जी लैंड जैसे, फॉर एग्जांपल लैंड प्राइसेस पे असर पड़ता है। जब लोग घर छोड़ के इंसर्जेंट्स के डर के मारे प्लेन्स में आ गए जी। तो यहाँ कीमतें बढ़ गई।
बढ़ गई ना। हाँ जी। अच्छा, जब किडनैपिंग होती थी तो वो रैंसम मांगते थे उनसे, तो बेचारे ज़मीनें बेच बेच के रैंसम देते थे। वो उनको लोगों को किडनैप करके बांग्लादेश ले जाते थे। बांग्लादेश आई कितनी दूर, अगरतला आप जाइए 1 किलोमीटर पे है। जब तक पुलिस को खबर लगेगी मर्डर हुआ है, वो बांग्लादेश चला गया होगा। जी। 1 किलोमीटर तो आदमी कितनी देर लगती है। तो सिचुएशन वॉज वेरी टफ, बट गॉड वॉज काइंड, ठीक हो गया सब। जी सर। सर हम त्रिपुरा की बात कर ही रहे हैं, तो एक स्टोरी है जहाँ पे सीपीएम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई थी अंडर जस्टिस बर्मन टू इन्वेस्टिगेट्स द एक्सेसेस डन बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी. You were also called before the commission. This was when I was SPCID, Congress government was there. जी. सुखमा सेन गुप्ता चीफ मिनिस्टर थे, बड़े धाकड़ चीफ मिनिस्टर्स में से कहे जाते थे। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप जानती हैं डाइवर्सिटी तो चलती रहती है। तो कुछ MLAs जो CPM के, निरपेंद्र चक्रवर्ती वगैरह, बड़े मशहूर, बड़े काबिल लोग, बड़े निस्वार्थी, बड़े देश की सेवा करने वाले लोग, वो असेंबली में ही बैठ गए। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग धरना वरना जो भी किया, तो इन्होंने कहा, घर पे मीटिंग बुलाई और ये कहा कि भाई इनको गिरफ्तार कर लो। मेरे IG साहब थे साथ में, तो उनसे IG साहब से कहा कि IG साहब अरेस्ट कर लो। इन्होंने कहा जी कर लेंगे। जी. बात ख़त्म हो गई। बाहर जब लौट के आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप रिपोर्ट बनाइए इनको गिरफ्तारी के, कुछ उनके खिलाफ एविडेंस चाहिए ना, कुछ तो होगा। इन्होंने यहाँ मीटिंग की, जासूसी खुफिया मीटिंग की, ये कहा वो कहा, हम बिजली फोड़ देंगे, हम यहाँ नुकसान करेंगे, अराजकता फैलाएंगे स्टेट में। तो मैंने कहा सर वो है तो कुछ भी नहीं। तो कहने लगे आप ऐसे बना दो रिपोर्ट। तो मैंने कहा सर मैं फंस जाऊंगा, मैं ऐसे कैसे झूठी रिपोर्ट बना दूं। और थे तो मेरे सर्विस के, बड़े मेहरबान भी थे, बड़े काबिल भी थे, पर पता नहीं क्यों जोश में कह गए और फिर वो मेरे से नाराज़ हो गए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर को मना नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने फिर मेरे एडिशनल SP से कहा, उन्होंने उनको ऑब्लाइज कर दिया और फिर उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की। वो कर भी नहीं पाए क्योंकि वो असेंबली के अंदर ही थे, तो वहाँ पकड़ नहीं सकते थे। उसके बाद फिर सरकार पलटी, CPM की सरकार आई, कमीशन ऑफ इंक्वायरी आपको याद होगा सारे देश में बैठे, दिल्ली में भी बहुत बड़ा नेशनल कमीशन, शाह कमीशन बैठा। तो उस वक्त ये सारी बातें गई। तो एक ये बड़ी भारी कंप्लेंट थी कि उनके खिलाफ झूठा रिकॉर्ड बना के उनको गिरफ्तार करने की साजिश रची गई। मैं दिल्ली में था, BPRND, मुझे बुलाया गया। तो मैंने जाके ये जो बात थी सच्ची मैंने बता दी कमीशन में। और उसके बाद फिर एडिशनल SP साहब जो थे और IG साहब जो थे, इनको बुलाया गया। इनको जो नाराज़गी उन्होंने जाहिर करनी थी की। और मुझे खैर कुछ कहा नहीं उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने अच्छा हुआ, आपने यू स्टूड अप टू द पावर्स दैट बी। तो ये कहानी है उस वक्त की। सर जैसे अभी हम मणिपुर और त्रिपुरा की बात करें, तो सारे नॉर्थ ईस्ट को देखें तो डू यू थिंक दैट द नॉर्थ ईस्ट हैव बीन कॉन्स्टेंटली नेग्लेक्टेड सिंस इंडिपेंडेंस, बी इट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, बी इट इन टर्म्स ऑफ लोकल नीड्स एंड इवन मीडिया कवरेज? This I said earlier also, it is true. It is true, absolutely true. It is neglected. उसका कारण भी बता देता हूँ। पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है जी। मणिपुर के 2 MP हैं, मिजोरम का 1 MP है, त्रिपुरा के 2 MP हैं जी। जिस लोकसभा में 542 MP हों, 2 MPs की क्या हैसियत होती है? सही बात है। ये कारण है। आसाम को थोड़ा बहुत तवज्जो देते ज़रूर है कि आवाज़ बड़ी स्टेट है। किसी ज़माने में ये सारा आसाम था जी। इसको बांटा गया धीरे धीरे छोटे राज्यों में अलग अलग कारणों से। आज निगलेक्ट कम है, जी। तब ज़्यादा थी लेकिन अभी भी है। आज थोड़ी बहुत मीडिया कवरेज है इधर सेंटर में, तब तो बिल्कुल ही नहीं थी। आपको एक और बताऊं, जब मेरी पोस्टिंग हुई पहली बार तो मुझे ये कहा गया कि आई शुड रिपोर्ट टू चीफ सेक्रेटरी आसाम अगरतला। आसाम अलग राज्य है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। तो भारत सरकार को भी नहीं पता था जो ऑर्डर इशू करते थे कि ये है कहाँ। ये हालत थी उस वक्त। अफसोस की बात है लेकिन ट्रूथ इज होपफुली थिंग्स आर इम्प्रूविंग। आई एम होपफुल और ठीक हो जाएगा। कम से कम आज
गलत कारणों से इसे ही मणिपुर सारे देश को पता है आज। जी कुकी मैती सब ने नाम सुन लिए कि कुकी मैती कोई चीज़ है, तो चलिए ऐसे ही सही हो जाएगा ठीक, पर टाइम लगेगा। अब कितने साल हो गए, 75 ईयर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम। यस होपफुली थिंग्स विल इम्प्रूव फर्दर। पिछले 10 सालों में बड़ा कुछ हुआ है, जी। उम्मीद करता हूँ होगा। और सर, मणिपुर के बाद आप गए पंजाब एज DIG CRPF, दैट टू अ वेरी क्रिटिकल टाइम ड्यूरिंग पंजाब इंसर्जेंसी। सर, हाउ वाज द सिचुएशन देयर? बहुत ख़राब सिचुएशन थी पूजा, बहुत ख़राब थी। बहुत टेररिज्म था वहाँ पे, किडनैपिंग, मर्डर्स, और लैंड डिस्प्यूट में ये लोग हिस्सा ले लेते थे, एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाते थे। आर्मी was deployed, CRP was deployed, local police was there. CRP alone had 40 battalions. Can you imagine? 40,000 troops. You were deployed in over 400 places. इतनी बुरी हालत थी। प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए एक्यूट थी कि पाकिस्तान का बड़ा सपोर्ट था। पाकिस्तान अगर इतना सपोर्ट नहीं किया होता तो ये हालत ख़राब होती नहीं। और पाकिस्तान को लगा था कि नाउ दे विल बी एबल टू टेक अवे पंजाब फ्रॉम अस। शुरू में हम लोगों ने एक्शन नहीं लिया। मेरी दो चीज़ों का मानना है, पंजाब की हालत पॉलिटिकल रीज़न से ख़राब हुई। हमारे देश में पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स सिचुएशन ठीक भी कर सकता है, ख़राब भी कर सकता है। उस वजह से हालत ख़राब हुई। और जब फाइनली इन्होंने रियलाइज़ करा कि भाई अब एक्शन लेना ही चाहिए फाइनली, तो जब एक्शन, डिसाइसिव एक्शन लेने की बात आई तो फिर लिया गया। एंड देन दे वर एबल टू डिफीट इंसर्जेंसी इन पंजाब फॉर दैट मैटर। इट वॉज वेरी टफ टाइम स्पेशली फॉर द पॉपुलेशन एंड मोर सो फॉर द पीपल इन रूरल एरियाज। रात को टेररिस्ट आ जाते थे, उनके यहाँ रहना, खाना खाना। दिन को पुलिस वाले जाते थे, रात फिर उन्होंने विलेजेस के साथ शुरू की एट्रॉसिटीज़, जिससे शुरुआत हुई, जिससे फिर गांव वाले भी उनके खिलाफ हुए। पाकिस्तान का बड़ा भारी सपोर्ट था, जिस वजह से ये हालात ख़राब हुए। पाकिस्तान ने सोचा कि नाउ विल बी एबल टू टेक अवे पंजाब फ्रॉम इंडिया, बट फाइनली दे डिड नॉट सक्सीड एंड इंडिया वाज एबल टू रिट्रीव इट फ्रॉम देयर। Such a tough time, sir. It was very tough time. KPS Gill was at the helm of affairs. I was there working and I was the only boss of the CRP at that time. 40 battalions के लिए generally there are senior people also, IG वगैरह भी होते हैं आजकल तो, लेकिन उस time I was alone, so I was always on the move 24 hours. Yeah. Sir, moving on, when we talk about paramilitary forces, there have always been a bone of contention between a cadre officer and an IPS officer, क्योंकि जो higher level of ranks होती हैं वो एक IPS officer के लिए reserved होती हैं. What are your thoughts on this? ये प्रॉब्लम आज का नहीं है, काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम चला आ रहा है. Why IPS officers at the top is for a certain reason, कि they have more experience, they can have more coordination with the state governments. If I am from Punjab cadre and posted as IG CRP in Delhi, and there is some work with the Punjab government, it will be easier. Or if I am an IPS officer, there are IPS officers in all the states, so it will be easier. उस वक्त दूसरी बात, इनके पास सीनियर अफसर भी ज़्यादा थे नहीं, लेकिन धीरे धीरे इनको जगह मिलनी शुरू हुई है. पहले 33% इनको कोटा मिल गया सीनियर पोजीशंस में, अब कुछ ज़्यादा है. अब तो इनके ऑफिसर्स जो हैं एडिशनल DG रैंक तक चले जाते हैं. लेकिन बैड ब्लड वॉज देयर. बल्कि मैंने भी जब ज्वाइन की CRP तो मेरे खिलाफ भी बड़ा कुछ चिट्ठियाँ, एनोनिमस लेटर्स गए, नॉट ओनली अगेंस्ट मी, अगेंस्ट ऑल IPS ऑफिसर्स. बट फाइनली IPS ऑफिसर्स व्हेन दे गो, दे work for the force, and ultimately these people also come round. I had a very wonderful memories of CRPF work with colleagues. I'm still in touch with many of them, and they appreciate your work. ऐसी बात नहीं है. तो कैरियर इंटरेस्ट जब होता है तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, बट आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग इशू. स्लोली इट विल गेटिंग सॉर्टेड आउट. समवेयर इक्विलिब्रियम है और रहेगा.
सर, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो यू हैव आल्सो सर्व्ड इन मेनी पैरामिलिट्री सर्विसेज, बी इट पीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, एंड थ्रू आउट दैट आपने काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ पैरामिलिट्री पर्सनल्स। सर, कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए एंड क्या चैलेंजेस आपने फेस करे? रफली कोशिश करता हूँ आपको हर फोर्स में से एक चीज़ बताऊँ। काम तो बड़ा किया, करते ही सारे, मैंने कोई अलग नहीं किया, सारे लोग करते हैं। पंजाब की बात से मैं बात शुरू करता हूँ। मैं जलंधर में एक बार को 1000 ट्रूप्स को एड्रेस कर रहा था, ऑफिसर्स भी थे। एक कस्टम है, उसको सैनिक सम्मेलन बोलते हैं, कोई लोग दरबार बोलते हैं। जवानों को एग्जोर्ट किया जाता है भी काम करो, और फिर उनसे पूछा जाता है कि आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या फोर्स की प्रॉब्लम है, बताइए। तो एक ने ये कहा कि हम लोगों का भी एक पब्लिक स्कूल होना चाहिए, जैसे आर्मी का स्कूल है, बीएसएफ का पब्लिक स्कूल है, नेवी का पब्लिक स्कूल है, एयरफोर्स का पब्लिक स्कूल है, सीआरपी का क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा भी तो अभी तो टेररिज्म की लड़ाई लड़ो, और ये काम हेडक्वार्टर का है, तो मैं वहाँ बता दूंगा। अब उसके 2 साल बाद मुझे मौका मिला, मैं डीआईजी एडमिनिस्ट्रेशन लग गया सीआरपी हेडक्वार्टर में, और तब मैंने वो स्कूल खोला। वो स्कूल रोहिणी में है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ दिल्ली है, बड़ा उसका नाम है, और सीआरपी के बच्चे पढ़ते हैं उसमें प्राइमरीली, और जनरेशन्स को फ़ायदा हुआ, जनरेशन्स को होगा। तो ये एक बड़ा पुण्य का काम मेरे हाथ से हुआ। और फिर मैंने एक वो आईआईटी भी खोला उनके लिए, और भी बड़े काम किए। तो ये तो रहा जहाँ तक सीआरपी की बात। बीएसएफ का आपको बताऊँ, मैं जम्मू में था, तो मैं बॉर्डर पे जब घूम रहा था, तो रात को उन दिनों पाकिस्तान के साथ रोज़ बड़ी फायरिंग होती थी, 18-20 हज़ार राउंड फायर के, तो ऐसे दिवाली मना रहे हो। तो जवानों से एक वही बात पूछो भी कोई दिक्कत है, ये है वो है, तो फायरिंग का बड़ा एक इशू था। तो 2 चीज़ें नहीं थे हमारे पास, बंकर नहीं थे। एक तो बंकर होता है भी जहाँ आप शेल्टर ले सकते हो, तो मैंने बंकर बनवाए। बड़ी दिक्कतें, हर काम, ये सारे काम कहने बड़े आसान हैं एक शब्द में, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वहाँ मैंने वो बनवाए। एनएसजी में जब मैं था, तो हमने एक तो अलाउंसेस बढ़वाए उनके, और फिर हमें लोगों की ज़रूरत थी। असम राइफल्स के लोग सारी उम्र नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, तो मैं वहाँ गया, डीजी से मिला, मैंने कहा जी आप कुछ लोग भेजो। वो भी बड़े खुश हुए, हम लोगों को काफ़ी फोर्स उसमें मिल गई। इसी तरह सीआईएसएफ की सैंक्शंस बड़ी कम थी, बटालियन की गाड़ियाँ कम थी, और बड़ा कुछ कम था इक्विपमेंट, वो मैंने करवाया। तो इस तरह हर जगह जहाँ जहाँ मैंने नौकरी की, मैंने बड़ी सेटिस्फेक्शन से वहाँ से जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ। तो एक एक उदाहरण मैं समझता हूँ। और एक मैंने बहुत बड़ा काम किया जो मैं अचानक याद आ रहा है। मैं जब सीआरपी में था, तो एक ब्रिगेडियर साहब थे हमारे डीआईजी वर्क्स के, वो आए, तो मैंने देखा उन्होंने यहाँ एक वो लगा रखा है मेडल सा गोल सा। मैंने पूछा जी ये क्या? कहने लगे ये आर्मी का कमेंडेशन डिस्क है, आर्मी चीफ का। मैंने कहा ऑर्डर लेके आओ। ऑर्डर ले आया। मैंने वो अपने डीजी से कहा जी मेडल असल में हर साल बड़े कम लोगों को मिलता है, जितने लोगों को हम रिकमेंड करते हैं। इतनी बड़ी फोर्स है, लाखों की फोर्स, 20-25 मेडल मिलते हैं, हम नाम भेजते हैं 50-100। तो हमने कहा वो बाकी के अगर 20 को मिला, बाकी 30 को कमेंडेशन डिस्क डीजी की तरफ से दे जाएं, कुछ तो हौसला बढ़ जाएगा। और 2-3 रुपये का, 4 रुपये का मेडल बनता था, कुछ कास्ट तो थी नहीं। अब होम मिनिस्ट्री भेजा गया, अब हर चीज़ के अप्रूवल के लिए जाना पड़ता है। वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी, उनका फ़ोन आया कि यार तूने ये भेज तो दिया है, सब फोर्सेस में लागू कर दे। मैंने कहा सब फोर्सेस में लागू कर दे। तो कमेंडेशन डिस्क लग गई सब फोर्सेस में। उसके बाद सब स्टेट पुलिस फोर्सेस ने उसकी नकल मार ली, और सारे देश में हर पुलिस फोर्स में आजकल लोग कमेंडेशन डिस्क लगा के घूमते हैं। एंड दैट वाज हम्बल कंट्रीब्यूशन ऑफ योर्स ट्रूली। ग्रेट वर्क्स एंड आई एम श्योर जनरेशंस विल थैंक यू फॉर दिस। अब कोई करे ना करे, सेटिस्फेक्शन ही चीज़ होती है, यही सबसे बड़े मेडल होते हैं। Sir, in recent times, we have seen many bureaucrats and many judges taking early retirements and then joining politics. Sir, आपके पास कभी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है, या फिर you yourself were ambitious to do so?
पॉलिटिक्स ज्वाइन करना अच्छी बात है, देश की सेवा है और बड़े प्लेटफॉर्म पे सेवा है और करनी चाहिए। अच्छा करते हैं जो लोग रिटायर होकर ज्वाइन कर लेते हैं। मेरी भी इच्छा थी, मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। उसके कई कारण हैं, अब मैं कारणों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक तो ये होता है कि अगर आप ऐसी जगह पोस्टेड हैं जहां आपको टॉप के लीडर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो एक तो वो कारण होता है कि भाई आपको वो फिर फैसिलिटेट करते हैं जाने के लिए, या ये कि आपका कोई रिश्तेदार वगैरह हो, किचन किन हो जो वहाँ लगा हुआ हो, जो आपको उस रास्ते ले जाए, या आप इतने पॉपुलर रहे हों किसी जगह पे कि जहाँ का आप इलेक्शन लड़ें। जी। और एक और कारण ये भी रहा कि मैं रहने वाला हूँ दिल्ली का हूँ, नौकरी मैंने सारी बाहर की है, जी। तो एक वो भी कारण है। और मैं दिल्ली से बाहर जाना नहीं चाहता था। अच्छा। बाद में पोस्ट रिटायरमेंट मुझे 2-3 ऑफ़र आए थे, नॉट इन पॉलिटिक्स, जैसे चेयरमैनशिप ऑफ द मणिपुर पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्नर ने ऑफ़र किया था, मैं नहीं गया। त्रिपुरा में चेयरमैन ऑफ द अकाउंटेबिलिटी पुलिस अकाउंटेबिलिटी कमीशन, मैं नहीं गया। इच्छा थी मेरी, मैं आई विल बी ऑनेस्ट, लेकिन अब नहीं हो पाए तो नहीं हो पाए, डजेंट मैटर। सर, एक ये परसेप्शन है दैट ऑफन पुलिस ऑफिसर्स फेवरेबल ट्रांसफर्स और प्रीमियम पोस्टिंग्स के लिए पॉलिटिशियंस के साथ अलाइन हो जाते हैं। क्या इफेक्ट पड़ता है सर आपके अकॉर्डिंग इसका डिलीवरी ऑफ जस्टिस पे और पब्लिक का जो ट्रस्ट होता है पुलिस पे? ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये फैक्ट है, ये होता है जी। उसका एक कारण तो ये है कि पुलिस वाला सोचता है कि मेरी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन इसके हाथ है बंदे के। जी। तो मैं जो ये कहता है, चाहे गलत काम कहता है, मैं करूं ताकि ये मेरे से नाराज़ ना हो। जी। और दूसरा ये है कि चलो ये कुछ पैसे बना रहा है तो मैं भी बना लेता हूँ साथ। अब उससे जस्टिस पे, काम पे तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा, काम कॉम्प्रोमाइज़ होगा और उसका अच्छा असर नहीं पड़ता है नीचे। पहले ये सिचुएशन नहीं थी इतनी जब मैंने ज्वाइन किया था, आजकल ये सिचुएशन बहुत ख़राब है। आपको याद होगा मैंने शुरू में भी कहा था कि पुलिस जो है अब ये लाइक प्राइवेट आर्मी ऑफ दी पॉलिटिशियंस बन गई है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पर ये सच है। और आगे ये बहुत कम मात्रा में था अब ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सर, जैसे अभी हमने बात करी पुलिस ऑफिसर्स कैसे पॉलिटिशियंस के साथ अलाइन हो जाते हैं, क्या आपका कभी अपने पॉलिटिकल बॉसेस के साथ कोई डिसएग्रीमेंट हुआ हो? बहुत बार हुआ, चीफ मिनिस्टर से लेके इंडिया के होम मिनिस्टर तक हुआ। चीफ मिनिस्टर का मणिपुर का एक किस्सा बताता हूँ सिर्फ, और मैंने ये सारा अपनी ऑटोबायोग्राफी में ये चीज़ें लिखी हैं। एक बार उन्होंने मुझे बुलाया और ये कहा कि इस थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दीजिए। जी। तो मैंने कहा कि सर इसको कैसे सस्पेंड कर दें, कोई इसके खिलाफ़ शिकायत है तो आप कंप्लेंट मुझे दे दीजिए, मैं इंक्वायरी करवा लेता हूँ, अगर ये गलत होगा तो सस्पेंड कर दूंगा 24 घंटे में। कहने लगे नहीं अभी करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं अभी तो पॉसिबल नहीं है। जी। और जिस एमएलए ने उनसे कहा था वो साथ बैठे हुए थे। जी। तो पता नहीं किस जोश में उन्होंने मुझे ही कह दिया कि मैं फिर आपको सस्पेंड कर दूंगा। तो मैंने कहा जी आप कर दीजिए। मैं बैठा रहा उनके टेबल पे, थोड़ी देर कहने लगे अब जाते क्यों नहीं। मैंने कहा जी अब कहाँ जाऊँ, मैंने दफ्तर तो जाना नहीं, आपने सस्पेंशन कह दिया, अब तो मैं घर जाऊँगा। तो आप मुझे ऑर्डर पकड़वा दीजिए, ये को कहिए टाइप कर लाए, मैं घर जाता हूँ। और क्या, झंडा मैंने बंद करवा दिया गाड़ी से बाहर पहले ही। कहने लगे नहीं नहीं तुम ऐसे करो, मेरे उसमें बैठो एंटी रूम में, साइड में कमरे होते हैं सब बड़े लोगों के, तो वहाँ बिठाए, फिर चाय मंगवाई। उन्होंने कहा तुम समझते नहीं हो पॉलिटिक्स से। मैंने कहा ये भी पॉलिटिक्स क्या हुआ, मतलब आप एक डीजी को कह रहे हो उसे सस्पेंड कर देंगे। और ये मैंने कोई आपसे गलत का तो कहा नहीं। मैंने कहा आपको फिर भी अगर जिद है तो आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप ऑर्डर कर दीजिए उसकी सस्पेंशन का, और सरकार ऑर्डर करेगी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा वो, आपका ऑर्डर जो है उसकी पालना होगी उसकी। दूसरा, त्रिपुरा में जब मैं गया ही था, एक दिन ही हुआ होगा, तो जो मेन ज़िला है वहाँ का अगरतला का, वहाँ पे एक एसपी की पोस्ट खाली थी। चीफ मिनिस्टर चाह रहे थे एक बंगाली अफसर, बड़े काबिल अफसर थे, भी उनको लगाया जाए। मैं उसके खिलाफ था इसलिए कि बंगालियों और ट्राइबल्स में झगड़ा था जी। तो मैंने उनसे कहा कि ये मैंने सुना है, मैं तो भी आया हूँ, सुना है कि एक ऑफिसर जो
यूपी से है, मेरठ से है, ये बड़ा लायक है, इसको लगा देते हैं। चीफ मिनिस्टर माने नहीं, थोड़े नाराज़ भी हुए। मैं भी ज़िद पड़ गया, तो मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा जी आप चीफ मिनिस्टर को कहो कि मुझे फिर वापस भेज दें। मेरी पोस्टिंग डीजी सिक्किम हो गई थी उस तभी साथ में ही। मैंने कहा जी मैं वहाँ चला जाता हूँ। अगर मेरी बात भी नहीं माननी इन्होंने तो फिर क्या फ़ायदा काम करने का। और मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं। ऐसे और भी किस्से हैं। और होम मिनिस्टर साहब का किस्सा मैं आपको सुना दूँ। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, नाम नहीं लूँगा, होम मिनिस्टर का नाम भी नहीं लूँगा, वहाँ पे देयर वाज ए लेडी ऑफिसर जो डेपुटेशन भी थी वेस्ट बंगाल से। वो हर साल अपना डेपुटेशन करा लेती थी एक्सटेंड, और काम नहीं करती थी। तो जब उनकी बारी आई तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने बड़े लोगों से मुझे कहलवाया, दोस्तों से, कभी जॉइंट सेक्रेटरी से, करते करते वो होम मिनिस्टर तक पहुंच गई। तो मुझे होम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी साहब का फ़ोन आया कि सर ये ऐसे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कर दीजिए। मैंने कहा भी मैं नहीं करूँगा। कहने लगे क्या कह रहे हो? मैं क्या, मैं सही कह रहा हूँ, इसके ये कारण है, आप होम मिनिस्टर साहब को बता दीजिए। अगले दिन फ़ोन आया कि उन्होंने बुलाया आपको। क्यों? इसी सिलसिले में। तो मैं चला गया, जाके बैठा, कितने बजे का जो टाइम होता। मैंने कहा बुलाओ। कहता बस आप बैठो मैं बुलाता हूँ। तो अंदर गए, जाके उन्होंने कहा भारत के गृह मंत्री जी से कि वो आए हुए हैं, तो भेज दूँ मैं? उन्होंने कहीं नहीं, रहने दीजिए। कह रहा वो मानेंगे? बाबू क्या मानेंगे नहीं? वो कहते जाने दीजिए उनको। मतलब बियॉन्ड ए पॉइंट वाई शुड यू डू इट? को पर्सनल इंटरेस्ट है क्या? लोगों को ऑब्लाइज करने की भी एक लिमिट होनी चाहिए ना। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर कॉन्शियस, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ वर्क। तो नहीं किया। और इसी वजह से मैंने सारे देश का नौकरी में भ्रमण किया, सारा देश देखा, बड़ा मज़ा आया। Sir, you have been a fearless officer throughout your life, but how can young police officers resist the temptation or pressure to collude with political authorities while also maintaining their integrity and commitment to public service? भाई ये तो एक आपकी भावना की बात है। आप ऑल इंडिया सर्विस ज्वाइन कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो काम करना ही चाहिए। और ये तकलीफ़ें तो नौकरी का हिस्सा है ही। और अगर आपको काम करना है तो तकलीफ़ों के लिए आप तैयार रहिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, फिर क्या करना है। और अगर साथ ही मिलना है तो बड़े लोग कर रहे हैं, नौकरी में भी बड़े लोग कर रहे हैं, पैसे भी बना रहे हैं, अच्छी पोस्टिंग्स भी ले रहे हैं। भावना की बात है। लेकिन अगर देश की सेवा करनी है तो फिर ढंग से करनी चाहिए, नहीं तो मत ज्वाइन करो, छोड़ दो। जी सर, यू हैड अ रिच करियर ऑफ 37 इयर्स। एब्सोल्युटली, नो डाउट। इसके दौरान आपकी पोस्टिंग्स बहुत बार सेंसिटिव एरियाज में भी हुई होगी। सो आपको या आपकी फैमिली को कभी कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा है? पूजा, मेरे हॉरोस्कोप में लिखा है कि जहाँ जहाँ टेररिज्म होगा मैं वहाँ जाऊँगा। मैं पंजाब गया, जम्मू एंड कश्मीर गया, मणिपुर गया, त्रिपुरा गया। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हुई, कई बार हुई। एक बार मैं जब मणिपुर में था तो कुछ इंसर्जेंट मेरा घर ढूंढ रहे थे फैमिली को अटैक करने के लिए। तो मेरी वाइफ घर पे नहीं थी, तो मार्केट में थी, तो जवान गए मार्केट से उनको लेके आया, घर पे गार्ड वार्ड लगाई। पंजाब में था जब चंडीगढ़ में, तो वही हाल हुआ। मैं अमृतसर में था रवेरो साहब के साथ उस वक्त, उस दिन, तो यही ऐसा किस्सा हुआ। पता लगा, इंटेलिजेंस मिल गई, माई वाइफ वॉज इन द मार्केट, सेम स्टोरी, सेम कहानी। तो ये हुआ। टेररिस्ट कॉल आना, थ्रेटनिंग लेटर्स आना, तो बस दैट वाज ए नॉर्मल रूटीन। एक बार मैं त्रिपुरा में एक जगह से गुज़र रहा था, तो मेरे गुज़रने के बाद 1 सेकंड में ही वो ब्लास्ट हो गया पीछे। मणिपुर में भी एक बार सिमिलर सिचुएशन हुई। मेरे पीछे जीप जो आई थी उड़ गई, और इंस्पेक्टर्स वगैरह जो थे, जो स्टाफ था, उनके सारे लिम्ब्स उधर दौड़ के उधर चले गए। आई वॉज सेव्ड बाई ए फ्यू सेकेंड्स। मुझे जो सबसे, उसको मैं इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ फॉर ए सर्टन रीज़न, किस्सा ये हुआ कि मैं जब जम्मू में था तो मैं एक बार राजौरी जा रहा था हेलीकॉप्टर से। मेरे पास एक हेलीकॉप्टर था अपना। तो मैं एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर में चॉपर ने उतरना था। जैसे ही मैं उतरा तो जम्मू कश्मीर कांस्टेबल, जम्मू कश्मीर का पुलिस कांस्टेबल, उसके हाथ में वायरलेस, उसको कोई टेररिस्ट कह रहा है कि मैं पहाड़ी से तेरे शॉप को देख रहा हूँ
और अभी मैं गोली से उड़ा दूंगा उनको। ओह, मैंने सुन लिया, मैंने कहा भी ये तो काम पक्का ही है, और वो देख रहा है और ऊपर से देख रहा है तो बड़ा क्लियर है, जी और स्नाइपर भी होगा, गोली तो मार ही देगा। मैंने कहा ले अभी आज तो काम हो गया अभी तेरा। और ये उसको ये कह रहा है कि तू गोली चला तो शाम को 4 बजे शमशान घाट में आ जाना, तेरा सारा परिवार वहीं मिलेगा, उनको तो नमस्ते कह लेना। अब ये एक तरीका भी होता है अगले को बातों में उलझाने का। जी तो ही वॉज ए वेरी स्मार्ट कांस्टेबल। इतनी देर में वो ब्रिगेडियर साहब आए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के सर चलिए, वो ले गए मुझे खींच के। और एक तो प्रोटोकॉल होता है, अदरवाइज अफसर खड़े हैं हाथ में लाओ, ये वो नहीं किया, और हम गाड़ी में बैठ के हम लोग जो है निकल गए। तो आई थिंक इट वॉज अ मैटर ऑफ प्रोविडेंस। Sir, you have also written a book with the title "Don't Laugh, We Are Police" in 1995. It is such an interesting title. Can you tell something about the book? आपको पहले टाइटल की बात सुनाता हूँ, वो फिर केस। वो एक कहावत है, कहते हैं कि वी आर ब्रिटिश, नो सेक्स प्लीज, वी आर ब्रिटिश। अभी हमारे किसी कुलीग ने मुझे इस बारे में जिक्र किया था, तो उससे खैर करते करते ये निकल आया। जब मैं आईजी इंटेलिजेंस था, माई सेकंड स्टेट इन मणिपुर, तो कोई ख़ास काम था नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा अभी टाइम पास किया जाए। तो मेरे को ये ख्याल आया, मैंने सब डीजीज़ को चिट्ठी लिखी, और कुछ ने तो आगे सब एसपीज़ को भेज दी जैसे होता है, और कहीं से जवाब आ गया कि सर एज़ फार एज इज कंसर्न देयर इज़ नो सच इंसिडेंट, इफ़ एनी सच इंसिडेंट हैपन्स इन फ्यूचर। वो मैंने किताब के प्रीफेस में लिखा। खैर कंपाइल हुई, कार्टून बने, किताब छपी। तो जब छपी तो मैंने खुशवंत सिंह साहब से जाके मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर वो आप अगर किताब रिलीज़ कर दें तो बड़ी आपकी कृपा होगी। कहने लगे कि नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ और ऐसा करूँगा विच विल बी गुड फॉर यू। अब इतने बड़े ऑथर, मैं उनसे बहस क्या कर सकता था, आई कुड ओनली रिक्वेस्ट हिम। तो खैर किताब रिलीज़ हुई इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। मेरी ज़्यादातर किताबें वहीं रिलीज़ हुई हैं, ऑफ द 14 बुक्स दैट यू आर टॉकिंग ऑफ। इस बुक को भी KPS गिल साहब को मैंने बुलाया, NN वोरा साहब जो पहले गवर्नर थे, बाद में J&K, वो भी थे। तो खैर ये किताब रिलीज़ हुई, बड़ी पब्लिसिटी हुई, बड़ी बिकी। और उसके बाद इट वॉज क्लोज टू माई बर्थडे, आई वॉज बॉर्न ऑन 11th मार्च 44। और सडनली 11 मार्च वाले दिन अखबार जब मैंने खोला हिंदुस्तान टाइम, तो खुशवंत सिंह के कॉलम एक लिखते थे, वो मैलिस टुवर्ड्स वन एंड ऑल, बड़ा मशहूर कॉलम था। 130 न्यूज़पेपर्स में वो छपा करता था हिंदुस्तान के। उसमें मेरा इस किताब का जिक्र था, शायद मेरी फ़ोटो भी थी उस पर। तो इट वॉज़ ए वेरी हैंडसम कॉम्प्लीमेंट दैट ही पेड, एंड आई थिंक इट वॉज़ ए मच बिगर गिफ्ट दैन रिलीजिंग द बुक। ये उन्होंने किया। और फिर मैं उनको आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड इनवाइट करने गया विद माय वाइफ फॉर डिनर विद हिज वाइफ, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन दिए कि इतने बजे तुम गाड़ी भेजना, इतने बजे मैं आऊँगा, ये मैं विस्की पीऊँगा, ये ब्रांड पीता हूँ, मैं इतने पैक पीता हूँ, मेरी वाइफ इतने पैक पीती है। ठीक 8 बजे खाना लगाना, और फिर मैं पता नहीं ठीक 8:45 बजे वहाँ से चला आऊँगा। तो हमने भी, अब हम लोग वर्दी वाले हैं, तो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजन हमने किया। और घर आके उन्होंने कोई प्रोफेशन की बात तो खास ना प्रोफेशन की बात की, ना किताब की बात की, पर वो वैसे हंसते हंसाते रहे। और पहला सवाल उन्होंने मेरी वाइफ से किया कि आप इनको कहाँ मिले थे। और मेरा बड़ा लाइफ का बड़ा फॉर्चुनेट इंसिडेंट है वो, बड़ा मैं अहोभाग्य समझता हूँ कि वो आए और उन्होंने इतना कुछ किया। तो और उस वजह से भी फिर मेरी किताब खूब बिकी। अब आप 95 की बात कर रही हैं, तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स होने वाले हैं, हो ही गए, 25 आ गया है। आज भी मुझे उस किताब के बारे में कभी कोई फ़ोन आता है, वो कहता है जी हमें ये किताब चाहिए। हाँ, तो दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग दैट हैपेंड इन लाइफ। या सर, अगर आप उस बुक में से कुछ, बिकॉज इट्स अ बुक ऑन पुलिस और थोड़ी ह्यूमरस बुक है, तो कोई जोक सुनाना चाहेंगे? चलिए, एक किस्सा जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश में नॉन फैमिली स्टेशन था उस वक्त, आज भी होगा, फॉर आर्मी, पुलिस, CRP वगैरह।
तो सीआरपी के एक डीआईजी साहब गए इंस्पेक्शन पे बटालियन की। जी हर बटालियन में ना एक मंदिर सा बना होता है, कभी आपने सुना होगा, टेंट में बना देते हैं चाहे जी वर्शिप के लिए। तो वहाँ पे वो गए जब, तो उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी हुई है। जी तो वो थोड़ा जोवियल अंदाज के डीआईजी साहब थे, उन्होंने पुजारी से पूछा, पुजारी भी क्या, कोई कांस्टेबल ही था, धोती बात के खड़ा था वो, जी कि पुजारी जी राधा कहाँ है। तो वो तो बेचारा घबरा गया, तो ऐसा सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस था, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा, भगवान कृष्ण की मूर्ति कभी अकेली होती नहीं, जी राधा जी हमेशा साथ होती। दूसरी बार पूछा, तीसरी बार उन्होंने चलते चलते कहा, अच्छा एक बार और छेड़ दिया उसे, पंडित जी बताया नहीं राधा कहाँ है। तो उसको ध्यान आया एकदम, उसकी ट्यूब लाइट जो फ्लिकर हुई, उसने कहा, सर ये नॉन फैमिली स्टेशन है सर, ओह वो लेडीज अलाउड नहीं है यहाँ पे, इसलिए राधा जी नहीं। तो मुझे ये अच्छा लगता है किस्सा। जी हाँ, सच एन इंटरेस्टिंग बुक सर, एंड Thank आई एम you. श्योर इसको देखने के बाद बहुत सारे यंग फेलोज विल आउट देयर वो पढ़ेंगे इस बुक को। मैं समझता हूँ कि जो आपने मेरे से आज डिस्कशन किया है, अगर किसी को किताब पढ़नी भी है और, तो मेरी ऑटोबायोग्राफी अगर वो पढ़ लें, एन अनलाइकली पुलिस चीफ, जो अभी हाल में रिलीज़ हुई है, जी तो जो सारा कुछ मैंने कहा रफली उसी में से है, तो उससे शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। सर, यंग एस्पिरेंट्स जो अभी यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज? मेहनत करो, ईमानदारी रखो, बी ए पर्सन ऑफ वैल्यूज़। वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वो करो। और इस उम्र को ध्यान में रखते हुए कहता हूँ सेहत का ध्यान रखो। जी हेल्थ बहुत ज़रूरी है, मेंटली खुश रहो, अपने आप को खुश रखो, खाना ठीक खाओ, जी यही चीज़ें हैं। मेहनत लेकिन बहुत ज़रूरी है, और जो मेहनत करता है, कहते हैं गॉड हेल्प्स देम हू हेल्प देमसेल्व्स। जी और मेरा ये मानना है पूजा कि इस देश में बहुत अपॉर्चुनिटी है। जी दिस इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन। ऑल दैट यू रिक्वायर इज़ ए बिट ऑफ एफर्ट, यस एंड एवरीवन कैन राइज टू द हाइट्स, अनलेस अगर किस्मत बहुत ख़राब हो। तो ऐसे लोग हैं जी जो बड़ी मेहनत की है, कई बार नहीं कुछ हो पाता, लेकिन आई एम श्योर एवरीवन विल सक्सीड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाला और हमसे All the best, Pooja, for inviting me. Thank you, Vision IAS. Very kind of all of you. It has been honestly an honor and a privilege to be here with you today. And for my first ever podcast, I didn't even know what a podcast is. And I was asking your staff Yes. what it is. But thank you so much. We are very honored. God bless you. Thank you. Bye bye. Okay.